بارش، سومرسیٹ موم، ترجمہ شاہد احمد دہلوی۔ سونے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ جب صبح آنکھ کھلے گی تو زمین دکھائی دینے لگے گی۔ ڈاکٹر میک فیل نے اپنا پائپ جلایا اور کٹہرے پر جھک کر آسمان پر جنوبی صلیبی ستاروں کو تلاش کرنے لگے۔ 2 سال محاذ جنگ پر رہنے اور ضرورت سے زیادہ دیر تک بھرنے والے زخم سے نجات پانے کے بعد وہ خوش تھے کہ چلو کم سے کم 12 مہینے تو آپیا میں خاموش اور پرسکون زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا۔ سفر ہی میں ان کی طبیعت بحال ہو چلی تھی۔ اگلے دن پاگو پاگو میں چند مسافر اترنے والے تھے، اس لیے رات کو چھوٹی سی محفل رقص ہوئی تھی۔ اس وقت بھی مشینی پیانو کے کرخت سر ان کے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ عرشے پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر انہیں اپنی بیوی ایک لمبی کرسی پر نیم دراز دکھائی دی۔ وہ ڈیوڈسن اور ان کی بیوی سے باتیں کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر میک فیل بھی ٹہلتے ٹہلتے ان کے پاس پہنچ گئے، اور جب انہوں نے روشنی کے نیچے بیٹھ کر اپنی ٹوپی اتار دی تو ان کے نہایت سرخ بال دکھائی دینے لگے۔ چندیا گنجی تھی اور لال جھائیاں پڑی کھال چمک رہی تھی۔ ان کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ دبلے پتلے آدمی تھے، بھینچا ہوا سا چہرہ جس سے عالمانہ شان ٹپکتی تھی۔ دھیمی اور نیچی آواز میں بولتے تھے اور لہجہ اسکاٹ لینڈ والوں جیسا تھا۔ ڈیوڈسن اور ان کی بیوی عیسائی مبلغ تھے۔ ڈاکٹر میک فیل اور ان کی بیوی کے ان سے دوستانہ تعلقات جہاز پر ہی قائم ہوئے تھے، اور یہ دوستی شستگی، مذاق یا پسندیدگی ذوق کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ محض بربنائے قربت۔ ان میں تعلق خاطر یوں بھی ہو گیا تھا کہ انہیں ان لوگوں کی صحبت گوارا نہیں تھی جو اپنے دن رات تاش کھیلنے اور شراب پینے میں صرف کرتے تھے۔ مسز میک فیل یہ سوچ کر کچھ کم فخر محسوس نہیں کرتی تھی کہ جہاز میں صرف وہ اور ان کے شوہر 2 ہی آدمی ایسے تھے جن سے ڈیوڈسن اور ان کی بیوی ملنا پسند کرتے تھے۔ ڈاکٹر میک فیل بھی، جو کم عقل نہیں بلکہ کم آمیز تھے، غیر شعوری طور پر اس تعلق خاص پر نازاں تھے۔ طبیعت چونکہ منطقی پائی تھی، اس لیے باہر تو ذرا لیے دیے رہتے، لیکن رات کو اپنے کیبن میں پہنچ جانے کے بعد ان کی نکتہ چینی شروع ہو جاتی۔ مسز میک فیل نے اپنا لباس اتار کر برش سے صاف کرتے ہوئے کہا، مسز ڈیوڈسن کہہ رہی تھی کہ اگر تم دونوں موجود نہ ہوتے تو نہ جانے یہ سفر ہمارے لیے کس قدر کٹھن ہو جاتا۔ کہتی تھی کہ جہاز میں بس تم ہی دونوں ہو جن سے ہم نے ملنا پسند کیا۔ میں تو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اتنے عالی جناب ہیں کہ ایک مذہبی خادم ہوتے ہوئے انہیں اپنی نمود کا اس درجے احساس ہوگا۔ نام و نمود کی بات نہیں ہے، ان کے کہنے کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا۔ ان کے اور ان کے شوہر کے لیے یہ کچھ اچھی بات نہ ہوتی کہ ان لوگوں میں جا کر گھل مل جائیں جو اس قدر ناہموار ہیں۔ ڈاکٹر میک فیل نے چھوٹا سا قہقہہ لگا کر کہا، ان کے مذہب کا بانی تو اس قدر الگ تھلگ نہیں رہتا تھا۔ بیوی بولی، میں نے تم سے بار بار کہا ہے کہ مذہب کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ خدا نہ کرے ایلک کہ میری فطرت تم جیسی ہو، لوگوں کی اچھائیوں پر تمہاری نظر کبھی نہیں جاتی۔ ڈاکٹر نے اپنی زرد نیلی کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی سال کی متاہل زندگی کے بعد انہوں نے یہ گر سیکھا تھا کہ امن قائم رکھنے کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ بیوی کی رائے کو جھٹلایا نہ جائے۔ سونے کے لیے وہ اپنے کپڑے بدل چکے تھے، اس لیے اوپر کی برتھ پر چڑھ گئے اور آرام سے لیٹ کر ایک کتاب پڑھنے لگے تاکہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اگلے دن صبح کو جب وہ عرشے پر آئے تو جہاز زمین کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ڈاکٹر میک فیل ندیدی نظروں سے زمین کو تکنے لگے۔ ساحل کی چاندی کی طرح چمکتی ریت کی پٹی پر سے پہاڑیاں اٹھتی چلی گئی تھی، اور یہ پہاڑیاں اوپر تک درختوں سے لدی ہوئی تھیں۔ ناریل کے موٹے اور سبز درخت پانی کے کنارے تک آ گئے تھے، اور ان میں سے سامونوں کے گھاس کے بنے ہوئے گھر دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں کہیں کوئی سفید چمکتا ہوا گرجا نظر آ جاتا۔ مسز ڈیوڈسن آ کر ڈاکٹر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ان کا لباس سیاہ تھا اور گلے میں سونے کی زنجیر تھی جس میں ایک چھوٹی سی صلیب آویزاں تھی۔ یہ چھوٹے قد کی خاتون تھی، بال بھورے اور روکھے تھے مگر احتیاط سے بنائے گئے تھے۔ نازک سی سنہری اینک بڑی بڑی نیلی آنکھوں پر لگی ہوئی تھی، لیکن اس سے بے وقوفی کا اظہار نہیں ہوتا تھا بلکہ ہوشیاری ظاہر ہوتی تھی۔ ان میں چڑیا کی سی پھرتی تھی۔ سب سے نمایاں چیز ان کی آواز تھی جو اونچی، کرخت اور بےلوش تھی، سننے والے کے کانوں کو اسی طرح ناگوار گزرتی جیسے برما چلایا جا رہا ہو۔ ڈاکٹر میک فیل نے ہلکی سی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کو تو یہ اپنا گھر ہی لگ رہا ہوگا۔ ہمارے تو نچلے جزیرے ہیں، ایسے نہیں ہیں، مونگے کے یا آتش فشانی ہیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ابھی اور 10 دن تک سفر کرنا ہے۔ ڈاکٹر میک فیل نے خوش مذاقی سے کہا، ان علاقوں میں ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے شہر کے کسی اور محلے میں آ گئے ہوں۔
جی ہاں، البتہ اس بیان میں کسی قدر جھوٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مشرقی سمندروں میں جب ہم کچھ فاصلے سے دیکھتے ہیں تو ہماری رائے مختلف ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ڈاکٹر میک فل نے ایک دھیمی آہ سرد بھری۔ مسز ڈیوڈسن نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کام کرنا نہایت دشوار ہے۔ یہاں جب جہاز رکتے ہیں تو لوگ گڑبڑا جاتے ہیں۔ پھر یہاں نیوی کا اسٹیشن ہے۔ مقامی لوگوں کے لیے یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے علاقے میں اس قسم کی دشواری سے ہمیں دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ دو ایک تاجر ضرور آتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے ان کا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ بدتمیزی نہ کرنے پائیں۔ اس پر بھی اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ہم ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ انہیں وہاں سے رخصت ہوتے ہی بنتی ہے۔ ناک پر اینک درست کر کے مسز ڈیوڈسن نے سبز جزیرے کو بڑی بے رحم نظروں سے گھورا۔ تبلیغی یا مشنری کا کام کرنے والوں کے لیے یہاں کامیابی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں تو خدا کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اس مقام سے بچایا۔ ڈیوڈسن کے علاقے میں وہ جزیرے شامل تھے جو سیمبا کے شمال میں ہیں۔ ان جزیروں میں خاصا فاصلہ تھا۔ ان میں جانے کے لیے انہیں چھوٹی کشتی میں لمبے لمبے فاصلے طے کرنے پڑتے تھے۔ جب وہ تبلیغی کام کرنے کے لیے جاتے تو ان کی بیوی صدر دفتر کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لیتی۔ ڈاکٹر میک فیل کو جب خیال آتا کہ مسز ڈیوڈسن کس خوش اسلوبی سے دیکھ بھال کرتی ہوں گی تو ان کا دل ڈوبنے لگتا۔ مقامی باشندوں کی گراوٹ کا ذکر وہ جس حقارت سے کرتی تھی اسے صرف حیرانی ہی سے سنا جا سکتا تھا۔ ان کا احساس حیا بھی عجیب و غریب تھا۔ جب ان سے نئی نئی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا، دیکھیے جب ہم ان جزیروں میں پہلے آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی شادی کی رسمیں اس قدر نفرت انگیز تھیں کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں مسز میک فیل کو بتاؤں گی اور وہ آپ کو بتا دیں گی۔ پھر ڈاکٹر میک فیل نے اپنی بیوی اور مسز ڈیوڈسن کو دیکھا کہ وہ اپنی کرسیاں ایک دوسرے سے بھڑائے 2 گھنٹے تک بڑے انہماک سے باتیں کیے گئے۔ وہ تھوڑی سی ورزش کرنے کے لیے عرشے پر ٹہلتے رہے اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو مسز ڈیوڈسن کی ہیجانی سرگوشی ان کے کان میں اس طرح پڑتی جیسے دور کہیں کوئی پہاڑی چشمہ اچھلتا کودتا بہتا چلا جا رہا ہو، اور اپنی بیوی کا کھلا ہوا منہ اور زرد پڑا ہوا چہرہ دیکھ کر انہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کسی بھیانک تجربے سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ رات کو جب وہ اپنے کیبن میں پہنچے تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا اسے پھولے ہوئے سانس سے دہرایا۔ اگلے دن صبح کو مسز ڈیوڈسن نے بڑے فتح مندانہ طور پر پوچھا، کہیے میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کبھی آپ نے اس سے زیادہ خوفناک باتیں سنی؟ اب تو آپ کو کوئی تعجب نہیں ہے کہ میں خود آپ سے یہ باتیں کیوں نہ کہہ سکی، حالانکہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ مسز ڈیوڈسن نے ڈاکٹر کے چہرے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ دیکھنے کا ڈرامائی اشتیاق تھا کہ متوقع اثر ہوا یا نہیں۔ آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہے گی یہ سن کر کہ جب ہم پہلی بار وہاں پہنچے تو ہمارے دل ڈوب گئے۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ کسی گاؤں میں بھی ایک اچھی لڑکی ملنی ناممکن تھی۔ اچھی کا لفظ انہوں نے بڑے تکنیکی طریقے پر استعمال کیا تھا۔ میں نے اور مسٹر ڈیوڈسن نے مشورہ کر کے مصمم ارادہ کر لیا کہ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کا ناچنا بند کر دیا جائے۔ یہاں کے لوگ ناچنے کے پیچھے دیوانے تھے۔ ڈاکٹر میک فیل نے کہا، جب میں جوان تھا تو مجھے خود ناچ سے نفرت نہیں تھی۔ جب کل رات کو آپ نے مسز میک فیل سے اپنے ساتھ ناچنے کو کہا تھا تو میں نے اسی وقت اس کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ناچے تو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن جب مسز میک فیل ناچنے پر رضامند نہیں ہوئی تو مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ موجودہ حالات میں مجھے یہ بہتر نظر آتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے ہی تک محدود رکھنا چاہیے۔ موجودہ حالات یعنی کیا؟ مسز ڈیوڈسن نے اپنی اینک میں سے ڈاکٹر کی طرف چونک کر دیکھا مگر ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور بولتی چلی گئیں۔ لیکن سفید آدمیوں میں ناچ ان جیسا نہیں ہوتا۔ اگرچہ مجھے مسٹر ڈیوڈسن کی رائے سے اتفاق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ اپنی بیوی کو کسی اور کی آغوش میں دیکھ کر کوئی شوہر محض تماشائی کیسے بنا رہ سکتا ہے۔ رہا میرا معاملہ تو جب سے میری شادی ہوئی ہے میں ایک قدم بھی نہیں ناچی، لیکن ان دیسیوں کا ناچ کچھ اور ہی چیز ہے۔ یہ نہ صرف بجائے خود فحش ہے بلکہ فحاشی کی ترغیب بھی دیتا ہے، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے اسے کچل ڈالا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہمارے علاقے میں 8 سال سے کوئی نہیں ناچا۔ اب وہ بندرگاہ کے دہانے پر آ گئے تھے اور مسز میک فیل بھی ان کے پاس آ گئی تھی۔ جہاز تیزی سے مڑ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی زمین سے گھری ہوئی بندرگاہ تھی جس میں جنگی جہازوں کا ایک بیڑا سما سکتا تھا، اور اس کے چاروں طرف اونچے اور سپاٹ سبز پہاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ دہانے کے قریب سمندری ہوا کے رخ پر ایک باغ میں گورنر کا بنگلہ تھا۔ ستارے اور دھاریوں والا جھنڈا اس پر آہستہ آہستہ لہرا رہا تھا۔ 2-3 صاف ستھرے بنگلوں اور ایک ٹینس کورٹ کے قریب سے گزر کر وہ گوداموں والے گھاٹ پر پہنچے۔
मिसेस डेविडसन ने उस छोटे जहाज को इशारे से दिखाया जो 300-400 गज के फासले पर खड़ा था। ये जहाज उन्हें आपिया ले जाने वाला था। मुश्ताक देसी लोगों का एक हुजूम शोर मचा रहा था। ये खुश मिजाज लोग थे जो जजीरे के हर हिस्से से आए हुए थे। उनमें से बाज सिर्फ देखने के इश्तियाक में आए थे, बाज सिडनी जाने वाले मुसाफिरों से लेन देन करने आए थे। ये अपने साथ अनन्नास और कीलों की बड़ी बड़ी गीलें लाए थे, तापा कपड़े, घोंघों और शार्क मछली के दांतों की मालाएं, कावा पियाले और जंगी कश्तियों के नमूने लाए थे। अमरीकी बहरिया वाले साफ सुथरे और नफीस वर्दियां पहने, घुटी हुई दाढ़ियां और मुस्कुराते चेहरे लिए उनमें घूम रहे थे और उनमें चंद अफसर भी मौजूद थे। जितने में सामान उतरे उतने में डॉक्टर मैकफिल, उनकी बीवी और मिसेस डेविडसन उस भीड़ भड़के को देखते रहे। डॉक्टर मैकफिल उन गिल्टियों को देख रहे थे जो छोटे बच्चों और लड़कों के निकली हुई थी, पुलिया बिगाड़ देने वाले फोड़े जो भरना ना जानते थे, और उनकी पेशावराना आंखों में चमक पैदा हो गई थी जब उन्होंने अपनी उम्र में पहली दफा फील्पा के मरीज देखे। ऐसे लोग जो बड़ा सारा फूला हुआ हाथ लटकाए या मोटी फूली हुई टांग घसीटते फिर रहे हों। औरत मर्द सब लावा लावा लटकाए हुए थे। मिसेस डेविडसन बोली, बड़ा बेहुदा लिबास है। मिस्टर डेविडसन कहते हैं कि इसे कानूनन रोक देना चाहिए। भला ऐसे लोगों से अच्छे अखलाक की तवक्को कैसे रखी जा सकती है जो अपने कूलों पर एक सुर्ख पट्टी लपेट लेते हैं और बस। डॉक्टर ने अपने सर से पसीना पोंछते हुए कहा, मौसम के लिहाज से तो ये मुनासिब है। अब जब वो जमीन पर पहुंच गए तो उन्हें गर्मी सताने लगी। हालांकि अभी बहुत सवेरा ही था। पहाड़ों के घेरे में होने की वजह से हवा की रमक भी पागो पागो में नहीं आ रही थी। मिसेस डेविडसन ने अपनी करख्त आवाज में कहा, अपने जजीरों में हमने लावा लावा को तकरीबन खत्म कर दिया है। सिर्फ चंद बुढ़े अब भी पहनते हैं, बस, और कोई नहीं है। सब औरतों ने लंबे चोगे पहनने शुरू कर दिए और मर्दों ने पतलून और फितोही। हमारे कयाम के आगाज में ही मिस्टर डेविडसन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि इन जजीरों के बाशिंदे पूरी तरह ईसाई उस वक्त तक नहीं बनाए जा सकते जब तक कि 10 साल से ज्यादा उम्र के लड़के को पतलून न पहना दिया जाए। लेकिन मिसेस डेविडसन ने 2-3 चिड़िया जैसी नजरें उन भारी भूरे बालों पर डाली जो मंडलाते हुए बंदरगाह के दहाने पर आ पहुंचे थे। चंद बूंदें भी पड़ने लगी। बोली, चलकर कहीं बैठना चाहिए। अम्बोह के साथ सब ने आगे बढ़कर एक बड़े से खुले गोदाम में पनाह ली जिस पर जस्त की चादरें पड़ी हुई थी। अब धोताल में पड़ना शुरू हो गया था। यहाँ उन्हें खड़े थोड़ी देर हुई थी कि मिस्टर डेविडसन भी उनमें आ मिले। दौरान सफर में डॉक्टर और मिसेस मैकफिल से खुश अखलाकी से पेश आते रहे थे, मगर उनमें अपनी बीवी की तरह घुलने मिलने की आदत नहीं थी। पेशतर वक्त उन्होंने मुताले में गुजारा था। वो खामोश बल्कि कुछ चिड़चिड़े आदमी थे और ऐसा मालूम होता था कि उनकी खुश अखलाकी एक जबर है जिसे उन्होंने ईसाइयत की वजह से इख्तियार कर रखा है। फितरतन वो लिए दिए और अकल खुरे थे। शक्लो शबाहत भी मुनफरिद थी। बहुत लंबे और दुबले थे, लंबे लंबे हाथ पांव ढीले ढाले से, कल्लों में गढ़े पड़े हुए और गालों की हड्डियां उभरी हुई। जिंदा से ज्यादा वो मुर्दा दिखाई देते थे, मगर उनके लब इस कदर शहवानी थे कि उन्हें देखकर ताज्जुब होता था। उनके बाल बहुत लंबे थे, उनकी सियाह आंखें हल्कों में धसी हुई थी मगर बड़ी बड़ी और गमनाक थी। हाथों की लंबी लंबी उंगलियां खूबसूरत थी, उनसे जबरदस्त कुव्वत का इजहार होता था, मगर उनकी सबसे नुमाया खुसूसियत यह थी कि उन्हें देखकर दबी हुई आग का एहसास होता था। देखने वाला मुतासिर और नामालूम तौर पर परेशान हो जाता था। ये ऐसे शख्स नहीं थे जिनसे कोई बेतकल्लुफ हो जाए। ये जब आए तो अपने साथ एक बुरी खबर लाए। छोटी चेचक की वबा फैली हुई थी और जजीरे के रहने वाले कांगाओं में ये बीमारी खतरनाक और मुहलिक होती थी। जो छोटा जहाज उन्हें आगे ले जाने वाला था उसके एक मुलाजिम को भी ये बीमारी लाहक हो गई थी। उस बीमार को किनारे पर लाकर एक अस्पताल में क्वारंटीन कर दिया गया था, मगर तार के जरिए हिदायत आई थी कि आपिया की बंदरगाह में जहाज को उस वक्त तक दाखिल नहीं होने दिया जाएगा जब तक ये इत्मीनान न हो जाए कि जहाज के अमले के किसी और फर्द को ये बीमारी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहाँ कम से कम 10 दिन ठहरना पड़ेगा, डॉक्टर मैकफिल ने कहा। मगर मुझे तो आपिया में फौरन तलब किया गया है। इसका कोई इलाज नहीं है। अगर जहाज पर कोई और इस बीमारी में मुब्तला न हुआ तो जहाज को इजाजत मिल जाएगी कि सफेद मुसाफिरों को लेकर आ जाए, लेकिन काले आदमियों को 3 महीने के लिए रोक दिया गया है। मिसेस मैकफिल ने पूछा, यहाँ कोई होटल है? डेविडसन ने एक दबा हुआ कहकहा लगाया, कोई नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने गवर्नर से बात की है। सामने के रुख एक ताजिर है, उसके पास कमरे हैं जिन्हें वो किराए पर चढ़ाया करता है। मेरी तजवीज यह है कि जैसे ही मेह थमे हमें चलकर देखना चाहिए कि क्या इंतजाम किया जा सकता है। आराम की तवक्को न रखिए। अगर सोने के लिए बिस्तर और सर छुपाने को छत मिल जाए तो बहुत गनीमत जानना चाहिए।
मगर बारिश खत्म होने में ना आती थी, लिहाजा छतरियां और बरसातियां लेकर ये सब रवाना हुए। बस्ती कोई नहीं थी, अफसरों के चंद बंगले थे, दो एक गोदाम थे और पीछे की तरफ नारियल और केले के दरख्तों में मकामी बाशिंदों की चंद झोपड़ियां थीं। जो घर उन्होंने तलाश किया वो घाट से 5 मिनट के फासले पर था। ये लकड़ी का 2 मंजिला घर था। दोनों मंजिलों के सामने बड़ा सा बरामदा था और छत जस्त की दीवारों की थी। मालिक एक दोगला ईसाई हॉर्न था, जिसकी एक देसी बीवी और भूरे भूरे बहुत से बच्चे थे। अपने घर की निचली मंजिल में उसने दुकान खोल रखी थी। कपड़े और सरबंद डब्बों में जरूरत की चीजें बेची जाती थी। जो कमरे उसने उन्हें दिखाए उनमें फर्नीचर न होने के बराबर था। डॉक्टर और मिसेस मैकफेल को जो कमरा मिला उसमें पुराना घिसा पिटा बिस्तर था, एक चीथड़े लगी हुई मच्छरदानी, एक लड़खड़ाती हुई कुर्सी और मुंह हाथ धोने के लिए एक तसला। उन्होंने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। बारिश हुए जा रही थी। मिसेस मैकफेल ने कहा, मैं अपना सामान नहीं खोलूंगी, बस जिस चीज की जरूरत होगी निकाल लूंगी। उन्होंने एक संदूक खोला ही था कि मिसेस डेविडसन कमरे में आ पहुंची। वो बड़ी चाको चौबंद दिखाई दे रही थी। नाखुशगवार माहौल का उन पर कोई असर नहीं था। बोली, मेरी मानो तो सुई तागा निकालो और फौरन मच्छरदानी को ठीक ठाक कर लो, वरना आज रात को झपकी भी न ले सकोगी। डॉक्टर मैकफेल ने पूछा, क्या बहुत मच्छर है? ये उन्हीं का मौसम है। आपिया में जब गवर्नमेंट हाउस में दावत दी जाती है तो कुल खवातीन को एक एक तकिया गिलाफ दिया जाता है ताकि अपनी टांगे उसमें छुपा लें। मिसेस मैकफेल ने कहा, काश बारिश जरा देर के लिए थम जाए। अगर सूरज चमकता होता तो मैं हिम्मत करके इस जगह को आरामदेह बना देती। अरे अगर आपने इसका इंतजार किया तो आपको न जाने कब तक इंतजार करना पड़ेगा। पागो पागो में तो इस सारे इलाके में सबसे ज्यादा बारिश होती है। देखिए ना, ये पहाड़ और ये खाड़ी, ये तो बारिश को खींचते हैं, और ये तो बारिश का जमाना ही है। उन्होंने मैकफेल की तरफ देखा, फिर उनकी बीवी की तरफ। दोनों इस तरह लाचार हुए खड़े थे जैसे निजात से महरूम रूहें हों। अपने लबों को समेटकर उन्होंने सोचा कि अब उनको अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इस किस्म के मजहूल लोगों को देखकर सब्र का दामन उनके हाथ से छूट जाया करता था। उनके हाथ खुजा रहे थे कि उनके सारे काम खुद ही कर दें। सुनिए, आप मुझे सुई तागा दीजिए, मैं आपकी मच्छरदानी की मरम्मत करती हूँ। इतने में आप अपना जरूरी सामान खोलिए, खाना 1 बजे मिलेगा। डॉक्टर मैकफेल, आप घाट पर जाकर देखिए कि आपका भारी सामान बारिश से बचाकर रख दिया गया है या नहीं। आप जाएं, ये देसी लोग इस कदर अहमक हैं कि सामान ऐसी जगह रख देंगे जहां इस पर खूब बारिश होती रहे। डॉक्टर ने अपनी बरसाती फिर पहनी और नीचे उतर गए। दरवाजे पर मिस्टर हान खड़े जहाज के एक अफसर से बातें कर रहे थे। वो अभी अभी यहाँ पहुंचे थे और उनके साथ एक सेकंड क्लास पैसेंजर था जिसे डॉक्टर मैकफिल ने जहाज पर मुताद्दिद बार देखा था। जहाज का अफसर एक सूखा हुआ पस्ताकत शख्स था, बड़ा गंदा। डॉक्टर को करीब से गुजरते देखकर उसने सर के इशारे से सलाम किया और बोला, ये छोटी चेचक का मामला तो बहुत खराब है डॉक्टर। अच्छा, आपने अपने रहने का ठिकाना कर लिया है? डॉक्टर मैकफिल ने सोचा, ये शख्स खामखा बेतकल्लुफ हुआ जा रहा है, मगर वो खुद कम आमेज आदमी थे, इसलिए बुरा ना माने। हाँ, हमें एक कमरा ऊपर मिल गया है। मिस टॉमसन, आपकी हमसफर भी आपके साथ आपिया जाने वाली थी, लिहाजा मैं उन्हें भी यहाँ ले आया। जहाज के अफसर ने अंगूठे से उस औरत की तरफ इशारा किया जो उसके साथ खड़ी हुई थी। उसकी उम्र शायद 27 साल की थी, गुदास जिस्म और बदमजाकी के लिहाज से खूबसूरत भी थी। उसका लिबास सफेद था और सर पर बड़ी सी सफेद टोपी थी। उसके मोटे मोटे टखने सफेद सूती मोजों में से उभरकर सफेद चमकदार जूतों के किनारों पर आए हुए थे। उसने दिलावेज मुस्कुराहट से मैकफिल की तरफ देखा। औरत ने फटी हुई आवाज में कहा, इतने छोटे कमरे के लिए यह शख्स मुझसे $1.5 रोजाना ऐंठने की फिक्र कर रहा है। जहाज के अफसर ने कहा, मैं बताऊं तुम्हें जो, ये मेरी दोस्त है, $1 रोजाना से ज्यादा नहीं दे सकती, बस इसी पर तुम्हें मान जाना पड़ेगा। ताजिर मोटा और चिकना था, खामोश खड़ा मुस्कुरा रहा था। बोला, मिस्टर स्वान, अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी सी कोशिश जरूर करूंगा। मैं मिसेस हान से मशवरा कर लूंगा और अगर हमें जरा भी गुंजाइश दिखाई दी तो हम कमी कर देंगे। मिस टॉमसन ने चमक कर कहा, यह चाले मुझसे चलने की कोशिश मत करो, यह मामला अभी तय हो जाना चाहिए। तुम्हें $1 रोज कमरे का मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर मैकफिल मुस्कुराए। जिस तरह बेबाकी से वो सौदा कर रही थी उसकी उन्होंने दिल ही दिल में तारीफ की। वो खुद ऐसे थे कि जो किराया उनसे मांगा जाता वही अदा कर देते। झिकझिक करने से बेहतर वो इसे समझते थे कि ज्यादा रकम दे दें। ताजिर ने ठंडा सांस लिया। अच्छा, तो मिस्टर स्वान को खुश रखने के लिए मैं $1 ही ले लूंगा। ठीक है, ये लो, अभी मेरे साथ चलो और एक प्याला चढ़ा लो। मेरे पास थोड़ी सी खालिस उम्दा रई इस थैले में है, उठा लाओ इसे।
मिस्टर सॉन, डॉक्टर साहब आप भी आइए। डॉक्टर ने कहा, आपका शुक्रिया, मगर मैं नहीं आ सकूंगा। मुझे अभी जाकर देखना यह है कि हमारा सामान ठीक से रख दिया गया है या नहीं। ये कहकर वो बारिश में निकल गया। बंदरगाह के दहाने से मेह की चादरें हवा के साथ अंदर आ रही थी और सामने का साहिल बिल्कुल मध्यम नजर आ रहा था। डॉक्टर मैकफेल 2-4 काले आदमियों के पास से गुजरे। उनके तन पर सिवाय लावा लावा के और कुछ नहीं था। उनके सरों पर बड़ी बड़ी छतरियां खुली हुई थी। ये काले आदमी तने हुए आराम से चल फिर रहे थे और डॉक्टर को देख देख कर मुस्कुराते और करीब आने पर अपनी जबान में खैर मकदम के अल्फाज कहते। जब वो वापस आया तो खाने का वक्त हो रहा था और उनका खाना ताजिर के कमरे में लगा दिया गया था। यह कमरा कुछ इस ढंग का बना हुआ था कि इसमें कोई रह नहीं सकता था। सिर्फ शान जताने के लिए बना दिया गया था। उसमें सील की बू थी और फिजा तबीयत को मुजमहिल करती थी। दीवारों पर रेशमी छेंट लगी हुई थी और छत के बीच में जर्द रंग के हरीरी कागज से ढका हुआ गिल्ट का एक झाड़ लटक रहा था। हरीरी कागज मक्खियों से झाड़ को बचाने के लिए लगाया गया था। डेविडसन कमरे में नहीं आए। मिसेस डेविडसन ने कहा, मुझे मालूम है कि वो गवर्नर से मिलने गए हैं और मेरा ये ख्याल है कि गवर्नर ने उन्हें खाने के लिए रोक लिया है। एक काली लड़की उनके लिए भुने हुए गोश्त के पार्चे लाई और थोड़ी देर बाद ताजिर भी ये देखने के लिए आ पहुंचा कि उन्हें सब चीजें मुहैया कर दी गई हैं या नहीं। डॉक्टर मैकफिल ने कहा, मिस्टर हान, मुझे मालूम हुआ कि हमारे साथ एक और मेहमान भी है। ताजिर ने कहा, उन्होंने एक कमरा लिया है, बस खाने का इंतजाम वो खुद करेंगी। उसने दोनों औरतों की तरफ मुअद्दिबाना देखा। मैंने उन्हें नीचे ठहरा दिया ताकि आपसे अलग रहें। आपके लिए वो बायसे तकलीफ नहीं होंगी। मिसेस मैकफिल ने पूछा, क्या जहाज के मुसाफिरों ही से कोई है? जी हाँ, खातून। वो जहाज के दूसरे कैबिन में थी। उन्हें आपिया जाना था। उनके लिए वहां एक खजांची की आसामी खाली है। अच्छा। जब ताजिर वहां से चला गया तो मैकफिल ने कहा, मेरा ख्याल है कि जब वो कमरे में खाना खाएंगी तो कुछ खुश नहीं होंगी। मिसेस डेविडसन बोली, अगर वो दूसरे कैबिन में थी तो शायद नाखुश नहीं होंगी, मगर मैं ठीक से नहीं जान सकी कि वो कौन है। जब क्वार्टर मास्टर उन्हें अपने साथ लाया तो मैं इत्तेफाक से वहां मौजूद था। उनका नाम टॉमसन है। मिसेस डेविडसन ने पूछा, वो औरत तो नहीं है जो कल रात को क्वार्टर मास्टर के साथ नाच रही थी? मिसेस मैकफिल बोली, हो ना हो वही है। मैं उस वक्त सोच रही थी कि न जाने ये कौन औरत है। मुझे कुछ बड़ी तेज सी दिखाई देती थी। मिसेस डेविडसन ने कहा, हाँ, कुछ अच्छा अंदाज नहीं था। इसके बाद वो इधर उधर की बातें करते रहे और खाने से फरागत पाने के बाद जुदा होकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, क्योंकि बहुत सवेरे के उठे हुए थे। जब वो जागे तो आसमान अब भी मटियाला था और बादल घिरे हुए थे, मगर बारिश रुकी हुई थी। वो टहलने के लिए उस बड़ी सड़क पर निकल गए जिसे अमरीकियों ने खाड़ी के किनारे किनारे बनाया था। वापस आने पर उन्हें मालूम हुआ कि डेविडसन अभी अभी लौटे हैं। चिड़चिड़ेपन से उन्होंने कहा, हमें शायद यहाँ 15 दिन रुकना पड़े। मैंने गवर्नर से इस पर बहस की, मगर उसने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं। मिसेस डेविडसन ने परेशान होकर अपने शौहर की तरफ देखा और बोली, मिस्टर डेविडसन की ख्वाहिश है कि अपने काम पर फौरन पहुंच जाएं। उन्होंने बरामदे में टहलते हुए कहा, हमें गए हुए 1 साल हो गया। देसी मुबल्लिगों की निगरानी मिशन करता रहा, मगर मुझे खौफ है कि हालात कुछ गड़बड़ हो गए हैं। वो अच्छे आदमी हैं, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा। खुदा तरस, इबादत गुजार और सच्चे ईसाई हैं, ऐसे कि उनकी ईसाइयत हमारे वतन वालों की ईसाइयत को शर्मिंदा कर सकती है, मगर उनमें काम करने की सलाहियत अफसोसनाक हद तक कम है। वो 1 दफा हिम्मत कर जाएंगे, 2 दफा हिम्मत कर जाएंगे, मगर हमेशा हिम्मत नहीं कर सकते। अगर आप किसी देसी मुबल्लिग को मिशन के हवाले कर दें तो वो चाहे जितना काबिल एतमाद दिखाई देता हो, आप देखेंगे कि उसमें बुराइयां जरूर आ जाएंगी। मिस्टर डेविडसन साकित खड़े थे। उनका ऊंचा कद और दुबला डील था और जर्द चेहरे पर बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें थीं। इन सब ने उनको बड़ा रोबदार बना दिया था। उनकी गर्म जोशी और भारी गूंजती हुई आवाज से उनका खुलूस जाहिर हो रहा था। मुझे तवक्को है कि मेरे करने का काम मुझे तैयार मिलेगा। मुझे जो कुछ करना है फौरन करूंगा। अगर दरख्त गल गया है तो उसे काट डाला जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा, और शाम को जब वो चाय पी चुके और उसके बाद उन्हें रात को कुछ खाना नहीं था तो वो सीले हुए कमरे में बैठे रहे। दोनों औरतें काम करती रहीं। डॉक्टर मैकफिल अपना पाइप पीते रहे और मिस्टर डेविडसन ने जजीरों में अपने तबलीगी काम की रुदात सुनानी शुरू की। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वहां के बाशिंदों को गुनाह का कोई एहसास ही नहीं था। वो एक एक करके तमाम अहकाम इलाही तोड़ते रहे और ये न समझे कि गलत काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही सबसे मुश्किल काम था कि इन काले आदमियों की घुट में गुनाह का एहसास उतारूं। डॉक्टर मैकफिल और उनकी बीवी को मालूम हो चुका था कि डेविडसन की मुलाकात अपनी बीवी से होने से 5 साल पहले वो जज़ायर सुलेमान में काम कर चुके थे।
وہ چین میں تبلیغی کام کرتی تھی۔ بوسٹن میں تبلیغی کام کرنے والوں کا ایک اجتماع ہوا، اس میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان دونوں کی شادی ہو جانے کے بعد ان لوگوں کو ان جزیروں میں بھیج دیا گیا تھا جہاں وہ اس وقت سے اب تک محنت سے اپنا کام کیے جا رہے تھے۔ مسٹر ڈیوڈسن سے جتنی ان کی گفتگو ہوئی اس سے انہیں ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ وہ ہمت ہارنے والے آدمی نہیں ہیں۔ وہ طبی آدمی بھی تھے، اس لیے جزیروں میں کہیں بھی اور کسی وقت بھی طلب کیے جا سکتے تھے۔ طوفانی جنوبی سمندر میں ویل شکار کرنے کی کشتی بھی برسات کے موسم میں محفوظ نہیں سمجھی جا سکتی، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ وہ معمولی چھوٹی کشتی میں چل پڑتے اور ہر وقت ان کے ڈوب جانے کا خطرہ رہتا۔ بیماری یا حادثے کی خبر پا کر وہ روانہ ہونے میں ذرا بھی پس و پیش نہ کرتے۔ بیسیوں دفعہ ایسا ہوا کہ ساری رات وہ جان بچانے کے لیے چپو چلاتے رہے، اور اکثر یہ بھی ہوا کہ مسز ڈیوڈسن نے یہ سمجھ لیا کہ وہ طوفان کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ مسز ڈیوڈسن نے کہا، میں بعض دفعہ ان کے آگے گڑ گڑایا کرتی کہ آپ نہ جائیے یا اس وقت تک ٹھہرے رہیے کہ موسم ذرا ٹھیک ہو جائے، مگر انہوں نے میری بات کبھی نہ مانی۔ یہ ضد کے بڑے پکے ہیں اور بس ارادہ کر لیں تو پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ڈیوڈسن نے کہا، اگر میں خود جھجک جاؤں تو بھلا کالے آدمیوں سے کیا منہ لے کر کہوں کہ خدا پر بھروسہ رکھو؟ میں بالکل نہیں ڈرتا، بالکل نہیں۔ کالے آدمی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر وہ مجھے بلائیں گے تو ان کی مصیبت کے وقت میں حتی الامکان ان کی مدد کے لیے ضرور پہنچوں گا۔ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں خدا ہی کا کام کرنے جا رہا ہوں تو خدا مجھے بھول جائے گا؟ اسی کے حکم سے ہوا چلتی ہے اور اسی کے حکم سے موجیں بل مارتی ہیں۔ ڈاکٹر میک فیل ذرا کم ہمت آدمی تھے۔ میدان جنگ میں جب خندقوں پر سے گولیاں سنسناتی ہوئی گزرتی تو پریشان ہو جاتے، اور جب وہ قریب کے فوجی اسپتال میں آپریشن کرتے ہوتے تو پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا اور اینک کے شیشے اس سے مدھم پڑ جاتے اور ہاتھ کانپنے لگتے۔ انہوں نے عیسائی مبلغ کی طرف نظر بھر کے دیکھا تو ان کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ بولے، کاش میں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ ڈیوڈسن نے طنز سے کہا، کاش آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے۔ پھر کسی وجہ سے ڈیوڈسن کو اپنا پچھلا زمانہ یاد آ گیا، وہ زمانہ جو انہوں نے اور ان کی بیوی نے جزیروں میں بسر کیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں اور مسز ڈیوڈسن ایک دوسرے کو دیکھتے اور ہمارے رخساروں پر آنسو بہنے لگتے۔ ہم دن رات مسلسل کام کیے جاتے اور کام میں مطلق ترقی نہ ہوتی۔ اگر میری بیوی میرے ساتھ نہ ہوتی تو خدا جانے میں کیا کرتا۔ جب میرا دل ڈوبنے لگتا اور امید ٹوٹنے لگتی تو یہ مجھے ہمت اور امید دلاتی۔ مسز ڈیوڈسن نے سر جھکا لیا اور اپنے کام میں لگی رہی۔ ان کے دبلے رخساروں پر ہلکی سی سرخی آ گئی اور ہاتھوں میں کپکپی سی آ گئی، مگر انہوں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، ہم تنہا تھے، اپنے لوگوں سے ہزاروں میل دور تاریکی میں گھرے ہوئے تھے۔ جب میں تھک کر چور ہو جاتا تو میری بیوی اپنا کام کاج چھوڑ کر انجیل اٹھا لاتی اور مجھے پڑھ کر سنانے لگتی، یہاں تک کہ مجھ پر سکون چھا جاتا، جیسے کسی بچے کی آنکھوں میں نیند گھل مل جاتی ہے۔ اور جب وہ سنا چکنے کے بعد کتاب مقدس بند کرتی تو کہتی، ان کی تمام برائیوں کے باوجود ہم انہیں بچا لیں گے، اور میرا سسکتا ہوا اعتماد پھر توانا ہو جاتا اور میں کہتا، ہاں خدا کی مدد سے میں انہیں بچا لوں گا، میں انہیں ضرور بچاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میز کے پاس آ کر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے وہ لیکچر دینے آئے ہیں۔ اصل میں فطری طور پر وہ اس قدر پست تھے کہ انہیں اپنی برائی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جنہیں وہ فطری باتیں سمجھتے تھے انہیں ہم جتاتے تھے کہ یہ گناہ ہے۔ ہمیں یہ جتانا پڑتا تھا کہ صرف ریپ اور جھوٹ اور چوری ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ ننگے جسم رہنا اور ناچنا اور گرجا میں نہ آنا بھی گناہ ہے۔ میں نے اسے بھی گناہ قرار دیا کہ جوان لڑکیاں اپنا سینہ کھلا رکھیں، اور اگر مرد پتلون نہیں پہنے تو یہ بھی گناہ ہے۔ ڈاکٹر میک فیل نے کسی قدر تعجب سے پوچھا، یہ کیسے؟ میں نے جرمانے عائد کر دیے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ گناہ کرتے ہیں صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر وہ گناہ کریں تو انہیں اس کی سزا دی جائے۔ اگر وہ گرجا نہ آتے تو میں ان پر جرمانہ کر دیتا، اور اگر وہ ناچتے تو میں ان پر جرمانہ کر دیتا، اگر وہ ٹھیک لباس نہ پہنتے تو میں ان پر جرمانہ کر دیتا۔ میں نے ایک طرح کا محصول یعنی ٹیکس لگا دیا تھا، ہر گناہ کی قیمت نقدی کی صورت میں ادا کی جائے یا کام کی صورت میں۔ چنانچہ بالآخر میں نے انہیں سمجھنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جرمانہ ادا کرنے سے کیا وہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے؟ ڈیوڈسن نے کہا، انکار کیسے کر سکتے تھے؟ مسز ڈیوڈسن نے ذرا دانت بھینچ کر کہا، بڑا کوئی بہادر آدمی ہی ہوگا جو مسٹر ڈیوڈسن کے حکم سے سرتابی کرے۔ ڈاکٹر میک فیل نے پریشان نظروں سے ڈیوڈسن کی طرف دیکھا۔ جو کچھ انہوں نے سنا تھا اس نے انہیں چونکا دیا، مگر اپنی ناپسندیدگی کا انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ آپ یہ نہ بھولیے کہ آخری علاج میرے پاس یہ تھا کہ میں انہیں گرجا کی رکنیت سے خارج کر سکتا تھا۔ کیا اس کا وہ کوئی اثر لیتے تھے؟
डेविडसन जरा सा मुस्कुराए और हल्के हल्के अपने हाथों को रगड़ने लगे। फिर वो अपना खोपरा नहीं बेच सकते थे। जब मर्द मछलियां पकड़कर लाते तो उन्हें उनमें से हिस्सा नहीं मिल सकता था। बस ये समझिए कि भूखे मरने की नौबत आ जाती, जी असर कैसे ना लेते। मिसेस डेविडसन बोली, इन्हें फ्रेडा विल्सन का किस्सा सुनाइए। फ्रेडा विल्सन डेनमार्क का एक सौदागर था जो कई साल से जजीरों में आया हुआ था। ताजिरों की तरह यह भी खासा मालदार था। जब हम जजीरों में पहुंचे तो वो नाखुश हुआ। बात यह थी ना कि वो मनमानी किया करता था। देसियों का खोपरा जब उसे पसंद आ जाता तो खरीद लेता, लेकिन कीमत के बदले सामान और शराब देता था। उसकी एक देसी बीवी थी, मगर बड़ा आवारा मिजाज था, शराबी भी था। मैंने उसे मौका दिया कि अपनी हरकतें ठीक कर ले, मगर वो ना माना। वो मेरी हंसी उड़ाने लगा। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए डेविडसन की आवाज खरज में उतर गई और वो 2-1 मिनट के लिए खामोश हो गए। इस खामोशी में धमकी का तासुर था। 2 साल में वो एक तबाह व बर्बाद शख्स रह गया। उसने जो कुछ रुबा सदी में कमाया था सब जाता रहा। मैंने उसे खत्म कर दिया और आखिरकार वो मजबूर होकर फकीर बना मेरे पास आया और गिड़गिड़ा कर मुझसे सिडनी जाने का किराया मांगा। पादरी की बीवी ने कहा, जब वो मिस्टर डेविडसन के पास आया है तो काश आप उसे देखते। वो एक खूबसूरत कवि आदमी था। उस पर खूब चर्बी चढ़ी हुई थी और उसकी आवाज बड़ी लंबी चौड़ी थी, मगर अब उसका कदो कामत आधा रह गया था और वो सर से पांव तक कांप रहा था। वो एकदम से बुढ़ा हो गया था। डेविडसन बेमानी नजरों से बाहर रात को देख रहे थे। बारिश फिर शुरू हो गई थी। यकायक नीचे से एक आवाज आई और डेविडसन ने पलटकर अपनी बीवी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। यह एक ग्रामोफोन की आवाज थी, करख्त और तेज। एक बेहुदा सी धुन जोर से बज रही थी। उन्होंने पूछा, ये क्या है? मिसेस डेविडसन ने अपनी ऐनक की नाक की चुटकी को ठीक से जमाया। दूसरे दर्जे के कई मुसाफिरों में से एक ने नीचे का कमरा लिया है, शायद वहीं से ये आवाज आ रही है। सब बैठे खामोशी से सुनते रहे। इतने ही में नाचने की आवाज भी आने लगी। फिर मौसीकी बंद हो गई और बोतलें खुलने की आवाजें और गर्मजोशी से बातें करने का शोर सुनाई देने लगा। डॉक्टर मैकफिल बोले, मेरा ख्याल है कि जहाज पर जो उसके दोस्त थे उन्हें वो रुखसती पार्टी दे रही है। जहाज 12 बजे छूट जाएगा, है ना? डेविडसन ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी घड़ी निकालकर वक्त देखा। बीवी से पूछा, क्या तुम तैयार हो? वो उठ खड़ी हुई और हाथ का काम समेटने लगी। आहिस्ता से बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा, अभी तो सवेरा है, सोने का वक्त नहीं हुआ, है ना? मिसेस डेविडसन ने बताया, हमें बहुत सारा पढ़ना है। हम कहीं भी हों, रात को सोने से पहले हम इंजील का एक बाब जरूर पढ़ते हैं और तफसीर के साथ, समझे आप? और फिर इस पर खूब बहस मुबाहिसा करते हैं। जहन के लिए यह बड़ी अजीब तरबियत होती है। चारों ने एक दूसरे को शब बखैर कहा। डॉक्टर और मिसेस मैकफेल कमरे में तन्हा रह गए। 2-3 मिनट तक उनमें से कोई ना बोला। आखिर डॉक्टर ने कहा, बेहतर होगा कि मैं जाकर ताश ले आऊं। मिसेस मैकफेल ने उनकी तरफ अदम एतमाद से देखा। डेविडसन और उनकी बीवी से जो गुफ्तगू हुई उसने उनकी तबीयत मुकद्दर कर दी थी, मगर वो ये नहीं कहना चाहती थी कि इस वक्त ताश खेलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि डेविडसन और उनकी बीवी किसी वक्त भी वापस आ सकते थे। डॉक्टर मैकफेल जाकर ताश ले आए और ताश लगाकर अकेले का खेल खेलने लगे। मिसेस मैकफेल बैठी ताश के पत्तों को देखती रहीं और दिल ही दिल में उन्हें गुनाह का एहसास होता रहा। नीचे बदमस्ती का शोर मचता रहा। अगले दिन आसमान साफ हो गया था और मैकफेल और उनकी बीवी को चूंकि पागो पागो में 15 दिन काटने ही थे, इसलिए अपना वक्त बेहतर से बेहतर गुजारने की वो तदबीरें करने लगे। वो घाट तक चले गए और अपने बक्सों में से बहुत सारी किताबें निकाल लाए। नेवी के अस्पताल के डॉक्टर से मिले और अस्पताल में जाकर उनके साथ उनके मरीजों को देखते रहे। गवर्नर की कोठी पर जाकर उन्होंने अपने नाम के कार्ड वहां छोड़ दिए। रास्ते में मिस टॉमसन उनके करीब से गुजरी। डॉक्टर ने ताजीमन अपनी टोपी उतारी और उसने जवाब में डॉक्टर को सलाम किया। उसकी आवाज से मालूम होता था कि वो बहुत खुश है। एक दिन पहले की तरह उसका फ्रॉक सफेद था, वही चमकते हुए ऊंची एड़ी के जूते जिनके किनारों पर से मोटे मोटे पांव उबले पड़ रहे थे। विदेशी मंजर में यह चीज अजीब सी दिखाई दे रही थी। मिसेस मैकफिल ने कहा, मुझे यह कहना पड़ता है कि इसका यह लिबास कुछ मुनासिब नहीं है। मुझे तो यह कोई अदना दर्जे की औरत दिखाई देती है। जब वो अपने घर वापस पहुंचे तो वो औरत ताजिर के एक काले बच्चे से बरामदे में खेल रही थी। डॉक्टर मैकफिल ने अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, इससे एक आध बात कर लो, यहाँ वो बिल्कुल अकेली है। अच्छा नहीं मालूम होता कि इसे यकसर नजरअंदाज कर दिया जाए। मिसेस मैकफेल जरा झिझकी, मगर उन्हें आदत थी कि जो कुछ उनके शौहर कहें उसे मान लें। बेवकूफों की तरह उससे बोली, शायद आप भी इसी घर में ठहरी हैं। मिस टॉमसन ने कहा, बड़ी मुसीबत है ना, कि इस तवेले में रहा जाए।
और लोग कहते हैं कि तुम बड़ी खुश नसीब हो कि तुम्हें ये कमरा मिल गया। किसी देसी आदमी के घर में रहना मुझे पसंद नहीं है, मगर मजबूरन ये भी करना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ कोई होटल क्यों नहीं है। उन्होंने दो एक बातें और की। ऊंची आवाज वाली और बातूनी मिस टॉमसन बज़ाहिर अभी और गप लड़ाने पर आमादा नजर आती थी, लेकिन मिसेस मैकफेल के पास फजूल बातों का बहुत कम सरमाया था, लिहाजा बोली, अच्छा तो मैं चलती हूँ ऊपर। शाम के वक्त जब वो चाय पीने बैठे तो डेविडसन अंदर आकर कहने लगे, मैंने देखा कि वो जो औरत नीचे ठहरी हुई है उसके पास दो जहाजरां बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आता उनसे उसकी दोस्ती कैसे हो गई। मिसेस डेविडसन बोली, वो कुछ ऐसी मोहतात तो दिखाई नहीं देती। बेकार और बेमकसद दिन गुजारने की वजह से सब थके हुए थे। डॉक्टर मैकफिल ने कहा, अगर हमें 15 दिन इसी तरह गुजारने पड़े तो न जाने हमारा क्या हश्र होगा। पादरी ने कहा, करने का काम बस यही है कि दिन को मुख्तलिफ मसरूफियतों में तकसीम कर दिया जाए। मैं चंद घंटे मुताले के लिए अलग कर दूंगा और चंद घंटे चलने फिरने के लिए। मेह बरसे या ना बरसे, बारिश के मौसम में आपको बारिश की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और चंद घंटे आराम के लिए मखसूस कर दूंगा। डॉक्टर मैकफिल ने अपने साथी की तरफ इस तरह देखा जैसे उन्हें उनकी बात का यकीन ना आया हो। डेविडसन के प्रोग्राम ने उन्हें परेशान कर दिया। अब वो फिर भुने हुए गोश्त का पार्चा खा रहे थे। शायद बावर्ची को और कुछ पकाना नहीं आता था। इतने ही में नीचे ग्रामोफोन बजना शुरू हो गया। डेविडसन उसे सुनकर चौंक पड़े, मगर कुछ बोले नहीं। मर्दों की आवाजें आने लगी थी। मिस टॉमसन के मेहमान मिलकर एक मशहूर गीत गा रहे थे और फिर उसकी फटी हुई और ऊंची आवाज भी सुनाई देने लगी। खूब शोर मच रहा था और कहकहे लग रहे थे। चारों औरत मर्द जो ऊपर की मंजिल में बैठे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, मजबूर थे कि गिलासों की खनक और कुर्सियों के घसीटने का शोर सुनते रहें। कुछ और मेहमान भी शायद आ पहुंचे थे। मिस टॉमसन ने पार्टी दी थी। पादरी और डॉक्टर में कुछ तिब्बी गुफ्तगू हो रही थी। मिसेस मैकफिल ने कता कलाम करके कहा, मुझे हैरत है कि उसने इतने सारे आदमियों को कमरे में समा कैसे लिया। इससे मालूम हो गया कि उनके ख्यालात कहाँ घूम रहे थे। डेविडसन के नाक सुकेड़ने से साबित हो गया कि गोया वो तिब्बी मौजुआत पर बातें कर रहे थे, लेकिन उनका दिल उसी तरफ लगा हुआ था। डॉक्टर मैकफिल फ्लैंडर की लड़ाई का एक तजर्बा जरा मजे मजे में बयान कर रहे थे कि अचानक डेविडसन उछलकर खड़े हो गए। मिसेस डेविडसन ने पूछा, क्या बात है ऑल्फ्रेड? ओफो, मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया। अरे ये तो एवली से निकाली गई है। ऐसी तो मालूम नहीं होती। होनोलुलु पर वो जहाज में सवार हुई, साफ जाहिर है, और वही पेशा उसने यहाँ भी चला रखा है। यहाँ आखिरी लफ्ज उन्होंने बड़े गुस्से से अदा किया। मिसेस मैकफिल ने पूछा, एवली क्या है? उन्होंने अपनी तारीक आंखें उनकी तरफ घुमाई और दहशत से उनकी आवाज लरजने लगी। होनोलुलु का गंदा मुकाम, तवाइफों का इलाका, हमारी तहजीब पर वो एक सियाह दाग था। एवली आबादी के इख्तिताम पर था। गलियों में से उतरकर जब बंदरगाह के करीब से होकर आगे जाते हैं तो अंधेरे में एक लड़खड़ाते हुए पुल पर से गुजरकर एक वीरान सड़क आती है जिसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। उससे आगे बढ़कर एकदम से रोशनी आ जाती है। सड़क के दोनों तरफ कारें खड़ी करने की जगह है। यहाँ सैलून है, भड़कीले और भोंडे, उनमें मशीनी पियानो शोर मचाते रहते हैं। उसी बाजार में हज्जामों और तंबाकू बेचने वालों की दुकानें भी हैं। यहाँ की फिजा मुतहर्रिक और पुरतवक्को सरखुशी से लदी रहती है। अगर दाएं या बाएं किसी तंग गली में मुड़ा जाए, सड़क एवली को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है तो मखसूस इलाके में पहुंच जाते हैं। बड़े खुशनुमा छोटे छोटे बंगले हैं, सब्ज रंग के, और उनके दरमियान चौड़ा और सीधा रास्ता है। इस इलाके की चमनबंदी की गई है। इस इलाके का मुअज़्ज़ज़ एहतमाम, उसका सुथरापन देखकर झूठे रोब का एहसास होता है, क्योंकि मोहब्बत को तलाश करने के लिए कभी इस कदर बाकायदा इंतजाम नहीं किया गया। रविशों पर खाल खाल रोशनी है। अगर बंगलों की खुली हुई खिड़कियों की रोशनी बाहर न पड़ती तो सारे में अंधेरा ही होता। मर्द घूमते फिरते और उन औरतों को देखते जो अपनी खिड़कियों में बैठी कुछ पढ़ती रहती या सीती रहती, और घूरने वालों की उन्हें खबर भी न होती। ये औरतें मुख्तलिफ कौमों की हैं और मर्द भी सभी कौमों के हैं। अमरीकी हैं, बंदरगाह में आने वाले जहाजों के मुलाजिम हैं, फौजी कश्तियों के बंदूकची हैं, खूब पिए हुए और फौजी हैं, काले और गोरे जो इस जजीरे पर उतरे हुए हैं, जापानी हैं जो दो दो और तीन तीन की टोलियां बनाए फिर रहे हैं, हवाई के बाशिंदे हैं, चीनी हैं लंबे लंबे कपड़े पहने हुए, और कुली हैं बड़ी बड़ी टोपियां पहने हुए, सब खामोश और शायद घुटे हुए। ख्वाहिशें गम अंगेज होती है। डेविडसन ने बड़े जोश से कहा, जुनूबी समुंदर में उससे ज्यादा बदनाम कोई और जगह नहीं थी। ईसाई मुबल्लिग सालहा साल से उसके खिलाफ तहरीक चला रहे थे। आखिर में मकामी अखबारों ने इस मसले को उठाया।
पुलिस ने कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। आप उनकी दलील तो जानते ही हैं, वो ये कहते हैं कि बुराई तो नागुज़िर होती है, लिहाजा इसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि इसे मकामी तौर पर महदूद कर दिया जाए और इस पर काबू रखा जाए। मगर हकीकत यह है कि उन्हें रिश्वत भी दी गई थी। उन्हें दुकानदारों ने रिश्वत दी थी, बदमाशों ने रिश्वत दी थी, खुद औरतों ने रिश्वत दी थी, मगर आखिर में पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। डॉक्टर मैकफिल ने कहा, होनोलुलु में जो अखबार जहाज पर आए थे उनमें मैंने ये खबर पढ़ी थी। जिस दिन हम पहुंचे हैं उसी दिन एवेली अपने गुनाह और बदनामी समेत खत्म हो गया। उसकी पूरी आबादी को अदालतों में पेश कर दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उस औरत को देखते ही क्यों ना पहचान गया कि वो कौन है। मिसेस मैकफिल ने कहा, अब जो आपने उसका जिक्र किया तो मुझे याद आया कि जहाज के रवाना होने से चंद मिनट पहले ही वो सवार हुई थी। मैं उसे उसी वक्त देखकर खटकी थी कि ये इसने कैसी वजह बना रखी है। डेविडसन ने गुस्से से कहा, उसने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं इसे गवारा नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ चले। मैकफिल ने पूछा, क्या करने का इरादा है आपका? मुझसे आप क्या करने की तवक्को रखते हैं? मैं अभी जाकर उसे रोकता हूँ। मैं ये नहीं दे सकता कि ये घर वो बन जाए। वो ऐसे लफ्ज को तलाश करते करते रह गए जो शरीफ खवातीन के कानों को गरा न गुजरे। उनकी आंखें चमक रही थीं और शिद्दत जज्बात से उनका चेहरा और भी जर्द पड़ गया था। डॉक्टर ने कहा, आवाजों से ऐसा मालूम होता है कि नीचे 3-4 मर्द मौजूद हैं। इस वक्त जाना क्या आप मुनासिब समझते हैं? डेविडसन ने उनकी तरफ हिकारत से देखा और बगैर कुछ कहे डग भरते हुए कमरे में से निकल गए। उनकी बीवी ने कहा, अगर आप ये समझते हैं कि जाती खतरा उन्हें अपने फर्ज की अदायगी से रोक सकता है तो आप मिस्टर डेविडसन को बिल्कुल नहीं जानते। वो अपने हाथ भींचे बैठी रहीं। उनकी उभरी हुई गालों की हड्डियों पर एक सुर्ख धब्बा नमूदार हो गया था। वो ये सुनने की मुंतजिर रहीं कि अब नीचे क्या होने वाला है। उन्होंने लकड़ी के जीने पर से जल्दी जल्दी उतरने और फिर धड़ से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। गाना एकदम से बंद हो गया, लेकिन ग्रामोफोन अपनी बेहुदा धुन पूरी आवाज से बजाता रहा। उन्होंने डेविडसन की आवाज सुनी और उसके बाद किसी भारी चीज के गिरने का धमाका सुना। धुन बजनी मौकूफ हो गई। उन्होंने ग्रामोफोन को जमीन पर दे मारा था। इसके बाद उन्होंने डेविडसन की आवाज फिर सुनी। अल्फाज उनकी समझ में नहीं आए। फिर मिस टॉमसन की ऊंची और करख्त आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक मिला जुला शोर उठा, जैसे कई आदमी मिलकर अपनी पूरी कुव्वत से चीख रहे हों। मिसेस डेविडसन ने मुंह खोलकर एक बड़ा सा सांस लिया और अपने हाथ और भी ज्यादा भींच लिए। डॉक्टर मैकफिल ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा, फिर अपनी बीवी की तरफ देखा। वो नीचे जाना नहीं चाहते थे, मगर सोच रहे थे कि औरतें तो कहीं ये तवक्को नहीं कर रही कि मैं नीचे जाऊं। फिर कुछ ऐसा शोर सुनाई दिया जैसे गुत्थम गुत्था हो रही हो। शोर अब ज्यादा वाज़ेह हो गया था। हो सकता है कि ये डेविडसन हो जिन्हें बाहर फेंका जा रहा हो। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। उसके बाद उन्होंने डेविडसन के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनी। वो अपने कमरे में चले गए। मिसेस डेविडसन बोली, मुझे अब उनके पास जाना चाहिए। ये कहकर वो उठी और बाहर चली गईं। मिसेस मैकफिल ने कहा, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो आवाज दे लें। और जब वो चली गईं तो बोली, कहीं उनके चोट न लग गई हो। डॉक्टर मैकफिल ने कहा, वो अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? दोनों 2-1 मिनट तक खामोश बैठे रहे और फिर दोनों चौंक पड़े। ग्रामोफोन फिर बजने लगा। वो अदबदाकर बजाया जा रहा था और एक गंदे गीत की नकलें बैठी हुई आवाज में जोर जोर से उतारी जाने लगी। अगले दिन मिसेस डेविडसन का रंग जर्द पड़ा हुआ था और वो थकी हुई थी। उन्होंने दर्द सर की शिकायत की। मालूम होता था कि वो ज्यादा बुढ़िया हो गई हैं और दानिशमंद भी। उन्होंने मिसेस मैकफिल को बताया कि पादरी को रात भर नींद न आई। उन्होंने सारी रात बेहद इस्तराब में गुजारी और सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले गए। उन पर शराब का एक गिलास फेंका गया था और उनके कपड़ों पर धब्बे पड़ गए थे और उनमें से बू आ रही थी। मगर जब मिसेस डेविडसन ने मिस टॉमसन का जिक्र किया तो उनकी आंखों से चिंगारियां निकलती मालूम हो रही थी। उस दिन को वो रोएगी जिस दिन उसने मिस्टर डेविडसन से बदतमीजी की। मिस्टर डेविडसन का दिल बहुत नर्म है। उनके पास कोई परेशान हाल ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने तसल्ली देकर ना भेजा हो, मगर गुनाह के लिए उनके पास रहम नहीं है और जब उन्हें हक बात पर गुस्सा आ जाता है तो बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। मिसेस मैकफिल ने पूछा, क्यों, वो क्या करेंगे? मुझे मालूम नहीं कि वो क्या करेंगे, मगर दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत भी मुझे इस पर आमादा नहीं कर सकती कि उस औरत की जगह ले लूं। मिसेस मैकफिल लरस गईं। इस पस्तकद औरत की फातिहाना यकीन दहानी में कोई बात खाइफ कर देने वाली जरूर थी। सुबह को दोनों बाहर जाने के लिए साथ निकली और सीढ़ियों पर से साथ साथ उतरने लगी। मिस टॉमसन का दरवाजा खुला हुआ था। वो एक बोसीदा सा बालापोश पहने कुछ पका रही थी। उसने आवाज देकर पूछा,
کیا آج صبح کو مسٹر ڈیوڈسن کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی؟ منہ اٹھائے دونوں خاموشی سے آگے بڑھ گئیں، گویا اس کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ مگر جب اس نے تمسخر سے قہقہا لگایا تو مارے حیا کے ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ مسز ڈیوڈسن پلٹ کر ایک دم سے چیخیں، خبردار جو مجھ سے بات کی! اگر تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تو تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گی۔ یہ تو بتاؤ، کیا میں نے مسٹر ڈیوڈسن سے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے آنا؟ مسز میکفیل نے جلدی سے سرگوشی میں کہا۔ اس کا جواب نہ دیجیے۔ دونوں آگے بڑھ گئیں اور جب اس کی آواز کی زد سے باہر آ گئیں تو مسز ڈیوڈسن نے غصے سے کہا، ڈھیٹ ہے ڈھیٹ! مارے غصے کے اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ جب وہ گھر واپس آ رہی تھیں تو وہ گھاٹ کی طرف ٹہلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ نک سک سے خوب درست ہو کر نکلی تھی۔ اس کی بڑی ساری سفید ٹوپی جس میں بےہودہ سے پھول لگے ہوئے تھے بجائے خود ایک گستاخی تھی۔ جب قریب سے گزری تو اس نے خوش ہو کر انہیں آواز دی، اور جب ان خواتین نے اپنی نظریں برف کی طرح منجمد کر لی تو دو امریکی ملاح جو پاس کھڑے دیکھ رہے تھے دانت نکال کر ہنسنے لگے۔ بارش کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے یہ دونوں اپنے گھر میں داخل ہوئیں۔ مسز ڈیوڈسن نے ناک چڑھا کر بڑی تلخی سے کہا، دیکھنا، اس کے نفیس کپڑے بارش میں خراب ہو جائیں گے۔ ڈیوڈسن جب واپس آئے یہ لوگ اپنا آدھا کھانا ختم کر چکے تھے۔ ان کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے مگر انہوں نے کپڑے نہیں بدلے۔ وہ خاموش اور بددل بیٹھے رہے۔ دو ایک نوالے کھا کر انہوں نے کھانا ختم کر دیا اور بارش کو دیکھنے لگے۔ جب مسز ڈیوڈسن نے مس ٹامسن کے دونوں واقعے سنائے تب بھی وہ کچھ نہ بولے۔ ان کی پیشانی کے بل اور زیادہ ہو گئے۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے بات سن لی۔ مسز ڈیوڈسن نے پوچھا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ مسٹر ہان سے کہا جائے کہ اسے یہاں سے نکال دیا جائے؟ ہم اسے اجازت نہیں دے سکتے کہ ہماری توہین کرتی رہے۔ ڈاکٹر میکفیل نے کہا، کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے جہاں وہ چلی جائے۔ وہ کسی کالے آدمی کے یہاں رہ سکتی ہے۔ ایسے موسم میں کسی کالے آدمی کی جھوپڑی کسی کے رہنے کے لیے بڑی بے آرام جگہ ہوگی۔ مسز ڈیوڈسن نے کہا، میں ایک جھوپڑی میں 1 سال تک رہی ہوں۔ جب کالی لڑکی تلے ہوئے کیلے لے کر آئی، روزانہ یہی مٹھاس کھانے کو ملتی تھی، تو ڈیوڈسن نے پلٹ کر اس سے کہا، مس ٹامسن سے پوچھ کر آؤ کہ وہ مجھ سے بے زحمت کب تک مل سکیں گی۔ لڑکی نے شرما کر سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ ان کی بیوی نے پوچھا، آلفریڈ، تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس سے ملنا میرا فرض ہے۔ میں اس وقت تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا جب تک اسے اصلاح کے پورے موقع نہ دوں۔ تم نہیں جانتے وہ کیا بلا ہے، وہ تمہاری بے عزتی کرے گی۔ اسے میری بے عزتی کرنے دو، اسے مجھ پر تھوکنے دو۔ اس کے پاس ایک غیر فانی روح ہے اور اسے بچانے کے لیے جو کچھ میرے اختیار میں ہے مجھے کرنا چاہیے۔ مسز ڈیوڈسن کے کانوں میں اس رنڈی کے قہقہے اب تک گونج رہے تھے۔ وہ حد سے گزر چکی ہے، خدا کے رحم کی حد سے گزر چکی ہے۔ ان کی آنکھیں ایک دم سے چمکنے لگی اور آواز ملائم اور دھیمی ہو گئی، ہرگز نہیں۔ گناہگار اپنے گناہ میں چاہے جہنم کی گہرائی سے بھی گہرا کیوں نہ اتر گیا ہو، لیکن یسوع مسیح کی محبت پھر بھی اس کے پاس پہنچ سکتی ہے۔ لڑکی جواب لے کر واپس آئی۔ مس ٹامسن سلام کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاروبار کے اوقات کے علاوہ پادری ڈیوڈسن جب بھی آئیں بخوشی ان سے ملاقات کی جائے گی۔ سب نے اس جواب کو مکمل خاموشی سے سنا اور ڈاکٹر میکفیل نے جلدی سے اس مسکراہٹ کو مٹایا جو ان کے لبوں پر نمودار ہو گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی بیوی نے دیکھ لیا کہ مس ٹامسن کی گستاخی باعث لطف ثابت ہو رہی ہے تو بگڑ جائیں گی۔ انہوں نے خاموشی سے کھانا ختم کیا۔ دونوں خواتین اٹھیں اور اپنے اپنے ہاتھ کے کام سمیٹنے لگیں۔ مسز میکفیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک بے شمار اونی گلوبند بن چکی تھیں، مگر اب بھی ایک اور گلوبند تیار کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اپنا پائپ جلایا، لیکن ڈیوڈسن اپنی کرسی میں جمے رہے اور بے معنی آنکھوں سے میز کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر وہ بھی اٹھے اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے زینے پر سے نیچے اترنے کی آواز سب نے سنی اور دروازہ کھٹکھٹانے پر مس ٹامسن کی سرکشانہ آواز، اندر آؤ، سنائی دی۔ وہ 1 گھنٹے تک مس ٹامسن کے کمرے میں رہے اور ڈاکٹر میکفیل بارش کو دیکھتے رہے۔ یہ بارش ان کے لیے اجیرن ہو گئی تھی۔ انگلستان کی بارش کی طرح یہ بارش ہولے ہولے زمین پر نہیں ہوتی رہتی تھی، بلکہ بڑی بے رحم اور خوفناک بارش تھی اس میں فطرت کی وحشیانہ قوتوں کی بدی کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ مہ برستا نہیں تھا، بہتا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے طوفان گر رہا ہے۔ جست کی چادروں پر اس قدر تسلسل کے ساتھ شور برپا رہتا تھا کہ دماغ اڑا جاتا تھا۔ اس میں اپنی نوعیت کی مخصوص شدت تھی۔ بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا کہ اس کے نہ رکنے پر چیخیں نکل جائیں گی، مگر پھر ایک دم سے اپنی بے چارگی کا احساس ہو جاتا، گویا جسم کی ساری ہڈیاں نرم پڑ گئی ہوں اور طبیعت نڈھال ہو جاتی اور جی چھوٹ جاتا۔
जब डेविडसन ऊपर आए तो मैकफेल ने घूम कर उनकी तरफ देखा और दोनों औरतों ने काम रोक कर उनकी तरफ नजरें उठाईं। मैंने तरह तरह से उसे समझाया, उसकी मिन्नत खुशामद की कि वो तायब हो जाए, वो बदकार औरत है। इतना कहकर वो रुक गए और डॉक्टर मैकफेल ने देखा कि उनकी आंखें गहरी हो गईं और जर्द चेहरा सख्त और दुरुस्त हो गया। अब मैं उन दुर्रों से काम लूंगा जिनसे यसू मसीह ने सूदखोरों और महाजनों को हैकल अरफा से निकाल दिया था। ये कहकर वो कमरे में टहलने लगे। उनके होंठ भिंचे हुए थे और उनकी काली भवें तनी हुई थीं। अगर वो दुनिया के बईद तरीन गोशे में भी फरार होकर जाएगी तब भी मैं उसका ताक़ुब करूंगा। फिर वो एकदम से पलटे और लंबे लंबे डग भरते कमरे से बाहर निकल गए। उनके दोबारा नीचे उतरने की आवाज सबने सुनी। मिसेस मैकफेल ने पूछा, क्या करना चाहते हैं वो? मिसेस डेविडसन ने अपनी ऐनक उतारी और उसके शीशे साफ करने लगी। मैं नहीं जानती। जब वो यसू मसीह के काम में मुनहमिक हो जाते हैं तो मैं उनसे कुछ नहीं पूछती। उन्होंने एक आह भरी। क्या बात है, वो अपने आप को खत्म कर लेंगे। अपने आप पर रहम करना उन्हें नहीं आता। डेविडसन की सरगर्मी के इब्तिदाई नतायज का इल्म डॉक्टर मैकफेल को दोगले ईसाई ताजिर से हुआ जिसके मकान में उनका कयाम था। दुकान के आगे से जब वो गुजर रहे थे तो उसने उन्हें रोका और बाहर आकर उनसे बातें करने लगा। उसके भद्दे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बोला, पादरी डेविडसन आकर मुझ पर खफा हुए कि मिस टॉमसन को यहाँ किराए पर कमरा क्यों दिया गया, मगर जब मैंने उन्हें कमरा दिया तो मुझे मालूम नहीं था कि वो कौन है। जब लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि कमरा किराए के लिए खाली है तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि उनके पास किराया देने को पैसा है या नहीं, और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का किराया पेशगी दे दिया था। डॉक्टर मैकफेल कुछ कहकर खामखा इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहते थे। जब सारे मामला तय हो गए तो आपका मकान है, जिसे चाहें दें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सबको जगह दे दी। हार्न ने मुतजब्जिब होकर उनकी तरफ देखा। उसे सही अंदाजा नहीं हुआ था कि मैकफेल किस हद तक पादरी के तरफदार हैं। पादरी साहब बहुत नाराज हैं। अगर पादरियों के अलावा किसी और को मैं मकान किराए पर ना दूं तो मुझे अपनी दुकान बढ़ाकर यहाँ से चल देना पड़ेगा। क्या उन्होंने तुमसे कहा है कि उसे निकाल दो? जी नहीं, उन्होंने कहा कि अगर वो तमीज से रहे तो उसे निकाल बाहर करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे नाइंसाफी नहीं करूंगा। मैंने उनसे वादा किया है कि अब उसके यहाँ मुलाकाती नहीं आएंगे। अभी उसी के हाथ से कहकर आया हूँ। उसने क्या कहा? उसने मेरे लत्ते ले डाले। ताजिर अपने पुराने ढीले ढाले कपड़ों में कसमसाया। मिस टॉमसन बड़ी अक्खड़ किराएदार साबित हुई। मेरा ख्याल है कि वो घर छोड़ देगी। जब वो किसी को अपने घर बुला ही नहीं सकेगी तो वो इस घर में रहना क्यों चाहेगी? कोई और जगह है ही नहीं जहां वो चली जाए, सिवाय काले आदमियों की झोपड़ियों के। मगर कोई काला आदमी उसे रखने पर आमादा नहीं होगा अब, जबकि पादरियों ने उस पर कदगन लगा दिया है। डॉक्टर मैकफेल ने बारिश की तरफ देखा। अच्छा, तो मेह थमने का इंतजार करना बेकार है। शाम को जब वो कमरे में जाकर बैठे तो डेविडसन ने अपने कॉलेज के जमाने के इब्तिदाई हालात सुनाए। उनका कोई जरिया आमदनी नहीं था, इसलिए छुट्टियों में छोटे मोटे काम करके खर्च चलाते रहे। नीचे खामोशी थी। मिस टॉमसन अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी हुई थी, लेकिन यकायक ग्रामोफोन बजना शुरू हो गया। उसने जिद में बजाना शुरू कर दिया, अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, लेकिन गाने के लिए कोई मौजूद न था और धुन गमनाक थी, ऐसी जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। डेविडसन ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। वो एक तवील मजेदार वाकया सुना रहे थे और बगैर किसी बदले हुए तासुर के सुनाते रहे। ग्रामोफोन बजता रहा। मिस टॉमसन एक के बाद दूसरा रिकॉर्ड चढ़ाती रही। ऐसा मालूम होता था कि रात का सन्नाटा उस पर वहशत तारी कर रहा था। हवा बंद थी और मौसम गर्म था। जब डॉक्टर मैकफेल और उनकी बीवी सोने के लिए लेटे तो उन्हें नींद नहीं आई। दोनों पड़े आंखें फाड़े मच्छरदानी के बाहर से मच्छरों के झल्लाए हुए गाने की आवाजें सुनते रहे। कुछ देर बाद मिसेस मैकफेल ने पूछा, ये क्या है? उन्होंने एक आवाज सुनी, डेविडसन की आवाज, जो लकड़ी की दीवार के उस तरफ से आ रही थी। आवाज से मुसलसल इसरार जाहिर हो रहा था। उसे सुनते सुनते तबीयत घबराने लगी। मिस्टर डेविडसन बाआवाज़े बुलंद दुआएं पढ़ रहे थे। वो मिस टॉमसन की रूह के लिए दुआ खानी कर रहे थे। 2-3 दिन गुजर गए। अब जब कभी सड़क पर आते जाते मिस टॉमसन से दो चार होते तो वो न तो तंजिया खुश अखलाकी से उनका खैर मकदम करती और न मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती। वो अपना मुंह ऊंचा किए, अपने रंगे हुए चेहरे पर बेताल्लुकी तारी किए, यूं त्योरी बदले गुजर जाती जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं।
ताजिर ने मैकफेल को बताया कि मिस टॉमसन ने कहीं और अपना ठिकाना तलाश करना चाहा, मगर नाकाम रही। रात को वो अपने ग्रामोफोन के सारे रिकॉर्ड बजा डालती, लेकिन खुशी का ये दिखाव अब सब पर खुल गया था। नाच की धुन की लय ऐसी थी जैसे किसी का दिल टूट गया हो और गमनाक कदम उठाए जा रहे हों। इतवार को जब उसने ग्रामोफोन बजाना शुरू किया तो डेविडसन ने हार्न को भेजा कि उससे कहे बाजा बजाना फौरन बंद कर दे, क्योंकि ये दिन आका का था। बाजा बंद हो गया और घर में सन्नाटा हो गया। सिर्फ जस्त की चादरों पर बारिश होने का मुसलसल शोर होता रहा। ताजिर ने अगले दिन मैकफेल से कहा, ऐसा मालूम होता है कि वो घबरा गई है। वो नहीं जानती कि मिस्टर डेविडसन क्या कर रहे हैं। वो डरी हुई है। मैकफेल ने उसी दिन सुबह को उसकी एक झलक देखी थी और उन्हें ऐसा लगा था कि उसका सरकशाना अंदाज बदल गया है। उसके चेहरे पर वो तासुर था जो शिकार होने वाले जानवर के इस्तिरार में पाया जाता है। ईसाई ताजिर ने कनखियों से उनकी तरफ देखा। डरते डरते उसने कहा, शायद आपको मालूम नहीं कि मिस्टर डेविडसन क्या कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। यह अजीब सी बात थी कि हार्न उनसे ये सवाल करे, क्योंकि इतना तो वो भी समझ गए थे कि पादरी साहब राजदाराना तौर पर कुछ कर रहे हैं। उन्हें यह ख्याल था कि वो उस औरत के गिर्द एक जाल बुन रहे हैं, एहतियात से, बाकायदगी से, और जब तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो वो एकदम से डोरी खींच लेंगे। ताजिर ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उससे कह दूं, अगर किसी वक्त तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे सिर्फ इत्तला करा दो, मैं आ जाऊंगा। जब तुमने उससे ये कहा तो उसने तुमसे क्या कहा? उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं ठहरा ही नहीं। जो कुछ उन्होंने कहा था बस उतना ही कहकर मैं तो चला आया। मैंने सोचा कहीं वो रोना शुरू न कर दे। डॉक्टर मैकफेल बोले, इसमें कोई शुबा नहीं है कि तन्हाई से वो घबरा गई है। और बारिश, उन्होंने चिढ़कर कहा, भले चंगे आदमी का दम बौला देने को काफी है। क्या बारिश कभी नहीं रुकती इस बेहुदा जगह में? बरसात के मौसम में बराबर हुए ही जाती है। यहाँ साल भर 300 इंच बारिश होती है। असल में खाड़ी की शक्ल देखिए ना, ऐसा मालूम होता है कि सारे समुंदर पर से ये खाड़ी बारिश खींच लेती है। डॉक्टर ने कहा, लानत भेजो खाड़ी की शक्ल पर। उन्होंने मच्छरों के डोरों को खुजाया। सब्रो जब्त उनसे रुखसत हो रहा था। जब बारिश रुक जाती और सूरज चमकने लगता तो घर तपने लगता, हवा में नमी बढ़ जाती, हब्स हो जाता और ऐसा महसूस होता कि हर चीज वहशियाना शिद्दत के साथ बढ़ती चली जा रही है। देसी बाशिंदे जो खुश मिजाज और बच्चों जैसी तबीयत के मशहूर हैं, अपने गुदे हुए जिस्म और रंगे हुए बालों के साथ इस मौसम में ऐसे दिखाई देते कि जैसे उनके इरादे बड़े खतरनाक हों, और जब वो पीछे पीछे नंगे पांव भागते तो खामखा खौफ से मुड़कर उनकी तरफ देखना पड़ता। ऐसा महसूस होता जैसे किसी लम्हे भी वो तेजी से करीब आकर दोनों शानों के बीच में छुरा घोंप देंगे। यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनके फटे हुए दीदों में कैसे बुरे इरादे छुपे हुए हैं। उनमें कुछ शबाहत उन मिस्रियों की पाई जाती है जिनकी तस्वीरें पुराने हैकलों की दीवारों पर पाई जाती हैं, और उनके गिर्द वो खौफ फैला रहता है जो नामालूम कदामत से वाबस्ता होता है। मिस्टर डेविडसन आते और चले जाते। वो बहुत मसरूफ थे, लेकिन डॉक्टर और उनकी बीवी को मालूम नहीं था कि वो किस काम में लगे हुए हैं। हार्न ने डॉक्टर को बताया कि वो रोजाना गवर्नर से मिलने जाते थे और एक दफा डेविडसन ने भी जिक्र किया था। ऐसा मालूम होता है कि वो इरादे के बड़े पक्के हैं, लेकिन अगर जरा उन्हें अच्छी तरह जांचा जाए तो मालूम हो जाता है कि उनमें उस्तवारी नहीं है। डॉक्टर ने तुड़ी दी, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आप चाहते हैं वो उसे मिनौन नहीं करेंगे। डेविडसन इस पर नहीं मुस्कुराए। मैं ये चाहता हूं कि जो सही बात हो वो करें। इसके लिए किसी शख्स को तरगीब दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मगर इस पर भी तो इख्तिलाफ राय हो सकता है ना कि सही क्या है। अगर किसी शख्स का पाँव गलने लगे तो क्या आप उस शख्स के पसोपेश करने को गवारा कर लेंगे? पाँव का गलना तो एक अमरे वाकया होगा, और बदी, डेविडसन ने जो कुछ किया था जल्दी ही जाहिर हो गया। चारों ने अभी अभी दिन का खाना खत्म किया था और अभी दिन के सोने के लिए रवाना नहीं हुए थे। गर्मी की वजह से दोनों औरतों और डॉक्टर मैकफेल को दिन की नींद लेनी ही पड़ती थी। डेविडसन को यह सुस्ती की आदत नापसंद थी। दरवाजा एकदम से खुला और टॉमसन अंदर घुस आई। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर मिस्टर डेविडसन के करीब आई। अरे बदमाश कमीने, तू मेरे बारे में गवर्नर से क्या क्या लगाता रहा? वो मारे गुस्से के बदहवास हो रही थी। एक लम्हे के लिए तवक्कुफ हुआ, फिर पादरी ने एक कुर्सी आगे बढ़ाई। आप बैठिए ना मिस टॉमसन, मैं सोच रहा था कि आपसे एक बार और गुफ्तगू कर लूं। अरे हरामजादे बदमाश, उसने गंदी गालियों की भरमार कर दी। डेविडसन संजीदगी से उसकी तरफ तकते रहे। बोले,
आप जिन गालियों का ढेर मुझ पर लगाना मुनासिब समझती हैं, मैं उनका कोई असर नहीं लेता, लेकिन मैं निहायत अदब के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ खवातीन भी मौजूद हैं। अब आंसू उसके गुस्से से उलझ रहे थे। उसका चेहरा सुर्ख और सूजा हुआ था, जैसे उसका दम घुट रहा हो। डॉक्टर मैकफिल ने पूछा, आखिर हुआ क्या? अभी एक आदमी यहाँ आया था और मुझसे कह गया है कि आपके जो जहाज यहाँ से छूटेगा उस पर मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्या पादरी की आंखों में कोई चमक पैदा हुई? उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मौजूदा हालात में आप ये तवक्को कैसे रख सकती हैं कि गवर्नर साहब आपको यहाँ रहने की इजाजत देंगे? वो चीख कर बोली, तूने ही ये किया है, तू मुझे नहीं चला सकता, ये तूने किया है। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। मैंने गवर्नर साहब पर दबाव डाला कि जो उनके फराइज हैं उनके मुताबिक जो वाहिद कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए वो यही हो सकती है। तुमने मुझे मेरे हाल पर क्यों न छोड़ दिया? तुम्हें तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। आप इसका यकीन कीजिए कि अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाती तो मैं इसका बुरा हरगिज न मानता। क्या तुम ये समझते हो कि मैं आबादी की इस जलील नकल में सदा रहने के लिए आई हूँ? मेरी शक्ल सूरत जंगलियों जैसी तो नहीं है, या है? डेविडसन ने कहा, तो इस सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि आपको शिकायत किस वजह से है। वो गुस्से में चीखती चिल्लाती कमरे में से पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। थोड़ी देर तक खामोशी रही। डेविडसन ने खामोशी को तोड़ा। बड़ा इत्मीनान हुआ ये जानकर कि गवर्नर ने बिलाखिर हुक्म दे दिया। वो एक कमजोर तबीयत का शख्स है और बात को टालने की कोशिश करता है। उसने कहा कि वो यहाँ सिर्फ 15 दिन रहेगी और अगर वो आपिया चली गई तो वहां अंग्रेजों का अमल दखल है, मुझसे उसका कोई वास्ता नहीं। मिस्टर डेविडसन उछलकर खड़े हो गए और कमरे में टहलने लगे। ये बड़ी बुरी बात है कि जो लोग बरसरे इख्तिदार हों वो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करें। वो ये समझते हैं कि जो बुराई आंखों के सामने ना हो वो बुराई नहीं रहती। इस औरत का वजूद ही एक लानत है। अगर वो किसी और जजीरे में चली जाएगी तो क्या बुराई खत्म हो जाएगी? आखिर में मुझे उनसे सीधी सीधी बात करनी पड़ी। डेविडसन की पेशानी झुक गई और उनकी ठोड़ी बाहर निकल आई। वो बड़े खौफनाक और जिद्दी दिखाई दे रहे थे। इससे आपका क्या मतलब है? हमारा तबलीगी इदारा ऐसा नहीं है कि वॉशिंगटन में उसका कोई असर रसूख ना हो। मैंने गवर्नर को जताया कि अगर उनके इंतजाम की शिकायत कर दी तो इससे उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच सकेगा। डॉक्टर मैकफिल ने कदरे तवक्कुफ के बाद दरियाफ्त किया, उसे कब जाना पड़ेगा? सैन फ्रांसिस्को का छोटा जहाज सिडनी से यहाँ अगले मंगल को पहुंचने वाला है। उसी जहाज में उसे जाना होगा। अभी 5 दिन बाकी थे। अगले दिन जब डॉक्टर मैकफिल अस्पताल से वापस आ रहे थे, कोई काम न होने की वजह से वो सुबह का वक्त गुजारने अस्पताल चले जाया करते थे, तो घर का जीना चढ़ते हुए उन्हें हॉर्न ने रोक लिया। माफ कीजिए डॉक्टर मैकफिल, मिस टॉमसन बीमार हैं, क्या आप जरा उन्हें देख लेंगे? हॉर्न उन्हें उसके कमरे में ले गया। वो अपनी कुर्सी में गुमसुम बैठी हुई थी, न कुछ पढ़ रही थी न सी रही थी, बस सामने घूरे जा रही थी। वो अपना सफेद लिबास पहने हुए थी, सर पर बड़ी सारी टोपी थी जिसमें फूल लगे हुए थे। डॉक्टर मैकफिल ने देखा कि पाउडर के नीचे उसकी जल्द जर्द और मटियाली थी और आंखें भारी हो रही थी। डॉक्टर मैकफिल ने कहा, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ कि आप बीमार हैं। नहीं, मैं असल में बीमार नहीं हूँ। मैंने ये बात तो इसलिए कही थी कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। मुझे उस जहाज पर सवार होना है जो फ्रिस्को जाने वाला है। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और डॉक्टर ने देखा कि उसकी आंखें एकदम से चमकने लगी। उसने हाथ इस तरह भींचने और खोलने शुरू किए जैसे तशन्नुज हो रहा हो। ताजिर दरवाजे पर खड़ा बातें सुन रहा था। डॉक्टर ने कहा, हाँ, मैंने यही सुना है। उसने खुश्क गले को तर करके कहा, मैं समझती हूँ कि इस वक्त मेरा फ्रिस्को जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। मैं कल तीसरे पहर को गवर्नर से मिलने गई थी, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। मैं उनके सेक्रेटरी से मिली। उसने मुझसे कहा कि मुझे जहाज से जरूर रवाना हो जाना है, बस और कुछ नहीं हो सकता। मुझे गवर्नर से मिलना जरूरी था, इसलिए आज सुबह को मैं उनके बंगले के बाहर खड़ी इंतजार करती रही और जब वो बरामद हुए तो मैंने उनसे बात की। मैंने अंदाजा किया कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं उनके टाले नहीं टल सकती थी और आखिर में उन्होंने कहा, अगर पादरी डेविडसन मान जाएं तो मुझे कोई एतराज इस पर नहीं होगा कि तुम सिडनी जाने वाले जहाज के आने तक यहाँ रुक जाओ। उसने ठहर कर डॉक्टर मैकफिल की तरफ तजब्जुब की नजरों से देखा। डॉक्टर मैकफिल ने कहा, मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या कर सकूंगा। देखिए, मैंने सोचा शायद आपको उनसे दरियाफ्त करने में कोई उज्र नहीं होगा। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर वो मुझे सिर्फ यहाँ रहने दें तो मैं यहाँ कोई और काम नहीं करूंगी। अगर वो कहेंगे तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी। 15 ही दिन की तो बात है, मैं उनसे पूछूंगा।
हार ने कहा, वो इस पर रजामंद नहीं होंगे। वो तुम्हें मंगल को यहाँ से निकाल कर रहेंगे, लिहाजा बेहतर है कि तुम भी रवाना होने के लिए आमादा हो जाओ। उनसे कहिए कि मुझे सिडनी में काम मिल जाएगा, यानी कोई ठीक काम, कोई बड़ा मुतालबा तो नहीं है ये। मैं जो कुछ कर सकूंगा करूंगा, और सीधे आकर मुझे बताएंगे भी, है ना? जब तक मामला इधर या उधर ना हो जाए मुझे इत्मीनान नहीं होता। ये काम ऐसा नहीं था जिससे डॉक्टर मैकफिल को खुशी हासिल होती, और शायद अपनी उफ्तादे मिजाज के मुताबिक उन्होंने रास्त इक़दाम नहीं किया। उन्होंने अपनी बीवी से वो सब बातें कही जो मिस टॉमसन ने उनसे कही थी, और उनसे कहा कि तुम इस बारे में मिसेस डेविडसन से बात करना। पादरी ने जो रवैया इख्तियार किया था वो बहुत सख्त था। अगर इस लड़की को पागो में 15 दिन ठहरने की इजाजत दे दी जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, मगर इस दानिशमंदाना तरीके के नतीजे के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। मिस्टर डेविडसन खुद ही सीधे उनके पास चले आए। मिसेस डेविडसन ने मुझे बताया कि टॉमसन आपसे बातें करती रही है। अलग अलग रहने वाले आदमी को एकदम से खुले में जबरदस्ती लाए जाने पर जो बरहमी होती है, वही कैफियत उस वक्त डॉक्टर मैकफिल की हुई। उन्हें गुस्सा आना शुरू हुआ और उनका चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे तो इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता कि सैन फ्रांसिस्को के बदले वो सिडनी चली जाए, और अगर वो शराफत के साथ रहने का वादा कर रही है तो उसे मजबूर करना कुछ अच्छा मालूम नहीं होता। पादरी ने अपनी सख्त नजरें उन पर जमा दी। वो सैन फ्रांसिस्को वापस जाने पर क्यों रजामंद नहीं है? डॉक्टर ने खफगी से कहा, मैंने नहीं पूछा, और मैं समझता हूं कि हर शख्स को अपने काम से काम रखना चाहिए। शायद ये कोई बहुत होशियारी का जवाब नहीं था। गवर्नर ने हुक्म दिया है कि इस जजीरे से पहला जहाज जो भी रवाना हो उससे वो निकल जाए। उन्होंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है और मैं इसमें मुदाखलत नहीं करूंगा। उसकी यहाँ मौजूदगी एक खतरा है। मैं समझता हूं कि आप बहुत सख्ती और जुल्म कर रहे हैं। दोनों औरतों ने परेशान होकर डॉक्टर की तरफ देखा, लेकिन उन्हें किसी झगड़े का अंदेशा नहीं होना चाहिए था क्योंकि डेविडसन नरमी से मुस्कुराए। डॉक्टर मैकफिल, मुझे बहुत अफसोस है कि आपने मेरे लिए ये राय कायम की। मुझ पर यकीन कीजिए कि उस बदनसीब औरत के लिए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खफगी से खिड़की के बाहर देखते रहे। इस वक्त बारिश नहीं हो रही थी और दरख्तों के बीच में से देसी देहात की झोपड़ियां नजर आ रही थीं। वो बोले, बारिश के रुक जाने से फायदा उठाने के लिए मैं बाहर हुआ हूँ। मिस्टर डेविडसन ने गमनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, अजराहे मेहरबानी, मेरी तरफ से कोई बुराई दिल में ना आने दीजिएगा। मैंने आपकी ख्वाहिश की तकमील नहीं की। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर आपने मेरी तरफ से बुराई बिठा ली तो मुझे अफसोस होगा। डॉक्टर ने चटक कर कहा, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आपकी राय खुद अपने मुताल्लिक इतनी अच्छी है कि मेरी राय की आपको जरूरत नहीं। डेविडसन ने हंसकर कहा, ये एक ही हुई मुझ पर। डॉक्टर मैकफिल अपने आप से पेचोताप खाते हुए सीढ़ियों पर से उतर रहे थे कि नाहक बदअखलाकी से पेश आए कि नीचे दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया और उसमें मिस टॉमसन खड़ी हुई थी। उसने पूछा, कहिए, आपने उनसे बात की? उन्होंने घबराहट में उससे नजरें मिलाए बगैर कहा, हाँ, मुझे अफसोस है कि वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद उन्होंने जल्दी से एक उचटती हुई नजर उस पर डाली क्योंकि उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकल गई थी। उन्होंने देखा कि उसका चेहरा मारे खौफ के सफेद पड़ गया। इससे उन्हें बड़ा दुख पहुंचा। एकदम से उन्हें ख्याल आया, मगर अभी नाउम्मीद मत हो। जो सुलूक वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं बहुत शर्मनाक है। मैं गवर्नर से खुद मिलने जा रहा हूँ अभी। उन्होंने सर हिलाया। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। ये तो वाकई आपकी बड़ी मेहरबानी है। जब आप उनसे कहेंगे तो मुझे यकीन है कि वो मुझे रहने की इजाजत दे देंगे। जब तक मैं यहाँ रहूंगी कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जो करने की नहीं होगी। डॉक्टर मैकफेल को बिल्कुल मालूम नहीं था कि उन्होंने गवर्नर से अपील करने का इरादा क्यों कर लिया। मिस टॉमसन के मामले में वो बिल्कुल गैर जानिबदार थे, लेकिन पादरी ने उन्हें गुस्सा दिला दिया था और गुस्सा उन्हें झुलस डालता था। उन्होंने गवर्नर की कोठी तलाश कर ली। वो एक कदावर खूबसूरत आदमी था, जहाज पर रह चुका था, भूरी कतरवा मूछें थी, इस वक्त बेदाग सफेद वर्दी पहने हुए था। डॉक्टर ने कहा, मैं एक औरत के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ जो उसी घर में रहती है जिसमें हम ठहरे हुए हैं। उसका नाम टॉमसन है। गवर्नर ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर मैकफेल, मेरा ख्याल है कि मैं उस औरत के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मैंने उसे हुक्म दे दिया है कि वो अगले मंगल को यहाँ से निकल जाए। बस मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाहता था कि आप कोई ऐसा नुक्ता नहीं निकाल सकते कि वो उस वक्त तक यहाँ रुक जाए जिस वक्त तक के सैन फ्रांसिस्को से जहाज यहाँ ना आ जाए, ताकि वो सिडनी चली जाए। मैं उसकी नेक चलने का जिम्मा लेता हूँ। गवर्नर मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी आंखें सुकड़ गईं और चेहरा संजीदा हो गया।
मैं बखुशी आपकी बात मान लेता डॉक्टर मैकफिल, लेकिन मैं हुक्म दे चुका हूँ और इस हुक्म को कायम रहना चाहिए। डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह मामले को बनाया, मगर अब गवर्नर की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो नजरें फेरे बददिली से उनकी बातें सुन रहा था। मैकफिल ने देखा कि गवर्नर पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। किसी औरत को जहमत देते हुए मुझे अफसोस होता है, लेकिन उसे मंगल को जहाज पर सवार हो जाना पड़ेगा। बस यही हो सकता है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? डॉक्टर साहब, मुझे माफ फरमाइए। मैं ये जरूरी नहीं समझता कि अपने अफसराना अहकाम की वजाहत सिवाय हुक्काम आला के किसी और के सामने करूं। मैकफिल ने नजरें बचाकर उसकी तरफ देखा। उन्हें डेविडसन का वो इशारा याद आ गया कि उन्होंने धमकी दी थी और गवर्नर के तर्ज अमल में एक खास किस्म की परेशानी थी। गुस्से में डॉक्टर मैकफिल ने कहा, डेविडसन एक बदमाश खुदाई फौजदार है। ये बात आप ही तक रहे डॉक्टर मैकफिल। मैं ये नहीं कहता कि मैंने डेविडसन के बारे में कोई अच्छी राय कायम की है, लेकिन इसका एतराफ मुझे करना ही पड़ता है कि वो बिल्कुल अपने ही हुदूद में थे। जब उन्होंने मुझे आगाह किया कि मिस टॉमसन जैसे किरदार की एक औरत की मौजूदगी ऐसी जगह में जहां फौज में भर्ती किए हुए लोग देसी बाशिंदों के साथ रहते हों, बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। ये कहकर वो खड़े हो गए और डॉक्टर मैकफिल को भी उठना पड़ा। मुझे आपसे दरख्वास्त करनी है कि मुझे माफ फरमाएं, मुझे कहीं जाना है। मिसेस मैकफिल की खिदमत में आदाब अर्ज कर दीजिएगा। डॉक्टर मैकफिल बड़े बद्दिल होकर रवाना हुए। उन्हें मालूम था कि मिस टॉमसन उनका इंतजार कर रही होगी और उससे ये कहने पर कि मैं नाकाम रहा, अपने आप को रजामंद न पाकर वो घर में पीछे के दरवाजे से दाखिल हुए और चुपके से सीढ़ियों पर चढ़ गए, जैसे उनके पास कोई ऐसी चीज हो जिसे वो छुपाना चाहते हो। खाने के वक्त वो खामोश और बेचैन थे, लेकिन मिस्टर डेविडसन हशाश बशाश थे। डॉक्टर मैकफिल को ख्याल हुआ कि डेविडसन रह रहकर फतामंदी के एहसास से उन्हें देख लेते हैं। उन्हें मान ख्याल आया कि डेविडसन को उनकी गवर्नर से मुलाकात और नाकामी का इल्म हो गया है, मगर किसने उन्हें इसकी इत्तला दी होगी। इस शख्स में कुछ अजीब कुव्वत थी। खाने के बाद उन्हें बरामदे में हार्न दिखाई दिया और जैसे यूं ही कोई बात करनी हो, वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। ताजिर ने चुपके से कहा, वो जानना चाहती है कि आप गवर्नर से मिले या नहीं। हाँ, वो कुछ भी करने पर रजामंद नहीं हुआ। मुझे बेहद अफसोस है, मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता था वो कुछ नहीं करेगा। ये लोग पादरियों की मुखालफत मोल नहीं ले सकते। डेविडसन भी बाहर निकलकर उनके करीब आ गए और खुशदिली से बोले, क्या बातें हो रही हैं? ताजिर ने चर्ब जबानी से कहा, मैं इनसे ये कह रहा था कि इनके आपिया जाने के लिए अभी कम से कम एक हफ्ते तक कोई मौका नहीं है। हार्न चला गया और दोनों आदमी कमरे में वापस आ गए। मिस्टर डेविडसन हर खाने के बाद 1 घंटा आराम करते थे। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे को किसी ने हल्के से खटखटाया। मिसेस डेविडसन ने अपनी करख्त आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला हुआ नहीं था। उन्होंने उठकर खोला। उन्होंने दहलीज पर मिस टॉमसन को खड़े हुए देखा। उसके चेहरे पर गैर मामूली तगय्युर था। ये वो सरकश मर्द मार औरत नहीं थी जिसने सड़क पर उनका मज़ाक उड़ाया था। उसके बाल जो हमेशा बने सवरे रहते थे, बेतरतीबी से गर्दन और शानों पर फैले हुए थे। वो स्कर्ट और ब्लाउज पहने हुए थी और पैर में स्लीपरें थीं। कपड़े मिले दुले और मैले थे। वो दरवाजे में खड़ी आंसू बहा रही थी और कमरे में दाखिल होने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मिसेस डेविडसन ने सख्ती से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? घुटी हुई आवाज में उसने कहा, क्या मैं मिस्टर डेविडसन से बात कर सकती हूँ? बड़ी खुश अखलाकी से डेविडसन बोले, अंदर आ जाओ मिस टॉमसन, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो कमरे में आ गई। देखिए, उस दिन मैंने आपसे जो कुछ कहा था, मुझे उसका बहुत अफसोस है और जो कुछ मैंने किया उसका भी अफसोस है। मैं उस दिन कुछ बहक गई थी, इसकी मैं माफी चाहती हूँ। खैर वो कुछ नहीं, मेरी पीठ इतनी मजबूत जरूर है कि चंद सख्त अल्फाज का बोझ उठा ले। वो इस तरह आगे बढ़ती जैसे गिड़गिड़ा रही हो। तुम चाहो तो मुझे मार लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर मुझे फ्रिस्को मत भेजो। पादरी की खुश अखलाकी गायब हो गई और उनकी आवाज एकदम से करख्त और लहजा सख्त हो गया। तुम वहां वापस जाना क्यों नहीं चाहती? वो डर कर सिमट गई। वहां मेरे अजीज रिश्तेदार रहते हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस सूरत में देखें। फ्रिस्को के अलावा जहां आप कहेंगे चली जाऊंगी। सैन फ्रांसिस्को तुम वापस जाना क्यों नहीं चाहती? मैं आपको बता तो चुकी हूं। वो आगे झुककर उसे घूरते रहे और उनकी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें उसकी रूह में झांकने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने जल्दी से सांस लेकर कहा, इस्लाही कैद खाना। उसने एक चीख मारी और उनके कदमों में गिरकर उनके पांव पकड़ लिए। मुझे वहां वापस मत भेजिए,
میں آپ کے سامنے خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں ایک اچھی عورت بن جاؤں گی، میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گی۔ وہ گڑ گڑا کر رونے لگی اور اس کے رنگے ہوئے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ ڈیوڈسن نے جھک کر اس کے چہرے کو اونچا کیا اور اسے دیکھنے پر مجبور کیا۔ کیا اصلاحی قید خانے سے ڈر رہی ہو؟ اس نے کانپ کر کہا۔ ان کے گرفتار کرنے سے پہلے میں فرار ہو گئی، اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو میں 3 سال کے لیے قید ہو جاؤں گی۔ ڈیوڈسن نے اسے چھوڑ دیا اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ آہوزار کرتی رہی۔ ڈاکٹر میک فیل اٹھ کھڑے ہوئے، بولے، اب تو اس کی صورت ہی دوسری ہو گئی۔ جب آپ کو اصل بات معلوم ہو گئی تو آپ اسے زبردستی نہیں بھیج سکتے۔ اسے ایک اور موقع دیجیے۔ وہ اپنی زندگی کا ایک نیا ورق الٹنا چاہتی ہے۔ میں اسے ایسا عمدہ موقع دے رہا ہوں کہ زندگی بھر میں نہ ملا ہوگا۔ اگر یہ تائب ہونا چاہتی ہے تو اسے اپنی سزا قبول کر لینی چاہیے۔ اس نے ان کے الفاظ کا مطلب کچھ غلط سمجھا۔ ان کی طرف دیکھ کر بولی، آپ مجھے یہاں سے نہیں نکالیں گے؟ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ نہیں، منگل کو تم سان فرانسسکو روانہ ہو جاؤ گی۔ مارے خوف کے اس کی چیخ نکل گئی اور پھر ایسی آواز میں روتی رہی جو غیر انسانی معلوم ہوتی تھی، اور وہ اپنا سر فرش پر پٹکتی رہی۔ ڈاکٹر میک فیل لپک کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اٹھانے لگے۔ اٹھو اٹھو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر لیٹو، میں تمہارے لیے کوئی دوا لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر میک فیل نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا اور کچھ گھسیٹ کر اور کچھ اسے اٹھا کر زینے پر سے نیچے اتارا۔ انہیں ڈیوڈسن اور ان کی بیوی پر غصہ آ رہا تھا۔ دونوں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہارن باہر کھڑا تھا، اس کی مدد سے انہوں نے اسے بستر پر لٹایا۔ وہ آہوزاری کیے جا رہی تھی، تقریباً ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن دیا۔ جب وہ دوبارہ اوپر گئے تو غصے میں بھننا رہے تھے اور تھک گئے تھے۔ میں نے اسے زبردستی لٹا دیا ہے۔ دونوں عورتیں اور ڈیوڈسن اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے بیٹھے وہ انہیں چھوڑ گئے تھے۔ وہ نہ تو اپنی جگہ سے ہلے تھے اور نہ شاید کسی نے بات ہی کی تھی۔ ڈیوڈسن نے عجیب سی ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ اس گناہگار بہن کی روح کے لیے دعا کرنے میں شریک ہوں۔ انہوں نے الماری میں سے انجیل نکالی اور اس میز پر جا بیٹھے جس پر سب نے کھانا کھایا تھا۔ اس پر سے برتن ابھی ہٹائے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے چائے دانی کو پرے کھسکا دیا۔ کبھی گہری اور گونجنے والی آواز میں انہوں نے وہ باب پڑھ کر سنایا جس میں یسوع مسیح اور زانیہ کی ملاقات کا بیان تھا۔ آئیے اب میرے ساتھ 2 زانو ہو جائیے اور پیاری بہن سادی ٹامسن کی روح کے لیے دعا کیجیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے جوش و خروش سے دعا مانگنی شروع کر دی، جس میں انہوں نے خدا سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ اس گناہگار عورت پر رحم فرمائے۔ مسز میک فیل اور مسز ڈیوڈسن آنکھوں کو ڈھانکے ہوئے 2 زانو ہو کر دعا سن رہی تھیں۔ ڈاکٹر میک فیل سٹپٹا گئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی بلا ارادہ 2 زانو ہو گئے تھے۔ پادری کی دعا میں وحشیانہ طاقت لسانی تھی۔ ان کا دل گداز ہو گیا تھا اور جب وہ بول رہے تھے تو ان کے رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے۔ باہر بے رحم مہ برسے جا رہا تھا، مسلسل برسے جا رہا تھا، خوفناک بدی کے ساتھ، بالکل انسانی فطرت کے مطابق۔ بالآخر دعا ختم ہوئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد ڈیوڈسن بولے، اب ہم آقا کی دعا دہرائیں گے۔ سب نے دعا دہرائی اور ڈیوڈسن کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسز ڈیوڈسن کا چہرہ زرد اور مطمئن تھا۔ انہیں اطمینان اور سکون حاصل ہو گیا تھا، لیکن ڈاکٹر کو ایک دم سے شرمندگی کا احساس ہوا۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کدھر دیکھیں۔ ڈاکٹر میک فیل نے کہا، میں ذرا نیچے جا کر دیکھ آؤں کہ وہ کیسی ہے۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہارن نے دروازہ کھولا۔ مس ٹامسن جھولنے والی کرسی میں پڑی رو رہی تھی۔ میک فیل نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ لیٹ ہی رہنا۔ میں لیٹ نہیں سکتی، میں مسٹر ڈیوڈسن سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری غریب بچی، ان سے مل کر تمہارا کیا بھلا ہوگا؟ تم ان کی رائے بدل نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں انہیں بلاؤں گی تو وہ آ جائیں گے۔ میک فیل نے تاجر کو اشارہ کیا، جا کر انہیں بلا لاؤ۔ تاجر اوپر گیا اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ انتظار کرتے رہے۔ ڈیوڈسن آ پہنچے۔ ان کی طرف اس نے اداس ہو کر دیکھا اور بولی، معاف کیجیے، میں نے آپ کو یہاں بلا بھیجا۔ مجھے توقع تھی کہ تم مجھے بلاؤ گی۔ میں جانتا تھا کہ میری دعا مقبول ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف گھورتے رہے، پھر اس نے نظریں پھیر لیں اور جب وہ بولی تو اس نے نگاہیں نہیں ملائیں۔ میں ایک بد کردار عورت رہی ہوں، میں تائب ہونا چاہتی ہوں۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، اس نے ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ انہوں نے دونوں مردوں کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ مجھے اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیجیے۔ مسز ڈیوڈسن سے کہہ دیجیے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئیں۔
उन्होंने बाहर निकलकर दरवाजा भेड़ दिया। ताजिर ने कहा, ही। उस रात को डॉक्टर मैकफेल देर तक सो नहीं सके और जब उन्होंने पादरी को जीने पर चढ़ते सुना तो उन्होंने घड़ी देखी, 2 बजे थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी आंख नहीं लगी। दोनों कमरों के दरमियान तख्ता बंदी थी, फिर भी पादरी के जोर जोर से दुआ खानी करने की आवाज सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि पादरी साहब खुद ही थक कर सो गए। जब अगले दिन सुबह को डॉक्टर ने पादरी की शक्ल देखी तो उन्हें ताज्जुब हुआ। उनका रंग और भी जर्द पड़ गया था, चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन उनकी आंखें गैर इंसानी आग से दहक रही थी। ऐसा मालूम होता था कि खुशी ने उन पर गलबा पा लिया है। डेविडसन ने कहा, जरा नीचे जाकर सादी को अभी देखाइए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसका जिस्म बेहतर हो गया, लेकिन उसकी रूह बदल गई है। डॉक्टर को थकन और किसी कदर घबराहट हो रही थी। बोले, आप बहुत रात गए तक उसके साथ रहे? जी हाँ, वो गवारा ही नहीं करती थी कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं। डॉक्टर ने चिढ़कर कहा, आप तो मशहूर मस्खरे पंच की तरह मालूम होते हैं। डेविडसन की आंखें सरखुशी से चमकने लगी। मुझ पर खुदा ने बड़ा फजलो करम किया है। कल रात को मुझे ये सआदत बख्शी गई कि एक गुमराह रूह को मैंने यसू मसीह की आगोश मोहब्बत में पहुंचा दिया। मिस टॉमसन फिर झूलने वाली कुर्सी में जा बैठी थी। बिस्तर ठीक नहीं किया गया था, कमरा उलट पलट हो रहा था। उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, मैला सा बालापोश पहने हुए थी, बालों में यूं ही गिरहें लगा रखी थी। उसने मुंह पर सिर्फ एक गीला तौलिया फेर लिया था। चेहरा सूजा हुआ था और रोते रहने से झुर्रिया गया था। बड़ी भोंडी दिखाई दे रही थी। जब डॉक्टर मैकफेल कमरे में दाखिल हुए तो उसने बेतवज्जोही से नजरें उठाईं। वो सहमी हुई और खस्ता हाल थी। उसने पूछा, मिस्टर डेविडसन कहाँ हैं? मैकफेल ने चटक कर कहा, अगर तुम्हें उनकी जरूरत है तो अभी आ जाएंगे। मैं तो ये देखने आया था कि तुम कैसी हो। अरे मैं अच्छी हूँ, आप परेशान ना हो। तुमने कुछ खाया? हार्न ने मुझे कॉफी लाकर दी थी। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। क्या आप समझते हैं वो जल्दी ही उतरकर नीचे आ जाएंगे? मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जब वो मेरे पास होते हैं तो मुझे इतनी वहशत नहीं होती। क्या तुम अब भी मंगल ही को रवाना होगी? जी हाँ, वो कहते हैं कि मुझे जाना ही पड़ेगा। मेहरबानी करके उनसे कह दीजिए कि अभी आ जाएं। अब वही एक ऐसे आदमी हैं जो इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर मैकफेल ने कहा, बहुत अच्छा। अगले 3 दिन में डेविडसन ने अपना तकरीबन सारा वक्त सादी टॉमसन के साथ गुजारा। सिर्फ खाने में वो औरों के साथ शरीक हो जाते। डॉक्टर मैकफेल ने यह बात देखी कि वो बराए नाम ही खाते थे। मिसेस डेविडसन ने तरस खाकर कहा, अपने आप को मारे डाल रहे हैं। अगर